Then under section 10, if you want to claim the exemption, so there are only two situations in which under section 10 you can claim the exemption. Under section 10, subsection 37, and under section 10, subsection 34, 34. Okay, you can claim the exemption. But see, under section 54, if you want to claim the exemption, okay, so you are supposed to make some investment, and then the exemption will be available to you. Okay, so see what section 54 says. Now see, under section 54 there is a whole series of the exemption. So there are 4 to 5 exemptions which are available under section 54 series. So the first section you can see here, this is section 54. Then we will discuss another section 54b. Another section we will discuss is, that is section 54d. Then another section we will discuss, that is section 54 EC. Okay, another section that we will going to discuss is the section 54F. Okay, so these are the sections that we have discussed: section 54, 54, 54D, 54F, okay, and 54B. So these are the various sections that we are supposed to discuss. Okay, so what this section says? Okay, so let us start with the first section, that is section 54. So there are 4 sections you have to learn, 5 sections: section 54, section 54B, 54D 3, 54 EC 4, and 54 F5. So these are the 5 exemptions that we are supposed to learn today. Okay, so see, we are starting with the section 54. Now what section 54 says? Capital gain on transfer of residential house property. So suppose what you are doing during the previous year, you were holding a house property. Okay, so what was the capital asset lying with you? The capital asset which was lying with you was the house property. और आपके पास कोई हाउस प्रॉपर्टी है, and that house property is transferred by you during the previous year. हाउस प्रॉपर्टी को आपने क्या किया? ड्यूरिंग द ईयर आपने ट्रांसफर किया, और ये ट्रांसफर करने पे आपको गेन हुआ. ओके, तो वो सिचुएशन में अगर आपको ये गेन में से एग्जम्पशन चाहिए, सपोज इफ यू वांट द एग्जम्पशन फ्रॉम द गेन, then in that case you are supposed to opt for the section 54. Okay, just a minute. एक minute. Okay, so what is the requirement to claim the exemption under section 54? Under section 54 you can claim the exemption, or you can think to claim the exemption. Suppose if you are having a house property, अगर आपके पास हाउस प्रॉपर्टी है और वो हाउस प्रॉपर्टी को आप क्या कर रहे हो, ड्यूरिंग द ईयर ट्रांसफर किया आपने, और ये ट्रांसफर करने पे आपको क्या हुआ? गेन, और ये गेन में से आपको क्या करना है? यू वांट द एग्जम्पशन. ओके, तो अगर आपकी प्रॉपर्टी जो आपने बेची है वो प्रॉपर्टी क्या है? हाउस प्रॉपर्टी, और इस पे गेन हुआ है और यहाँ से आपको एग्जम्पशन चाहिए, देन यू कैन थिंक अबाउट द सेक्शन 54. नाउ व्हाट सेक्शन 54 सेज? सेक्शन 54 व्हाट इट सेज, दैट हु इज एलिजिबल असेसी, मतलब ये एग्जम्पशन किसको मिले. So in order to claim the exemption under section 54, the assessee must be an individual or actual. तो assessee क्या होना चाहिए? या तो individual या actual. मतलब if assessee is a company, firm, AOP, DOI, they cannot think about the section 54. Section 54 is deduction is or exemption is available to only to the individual and actual. Second, which asset must be transferred? आपने कौन सी asset transfer की है तो section 54 का exemption मिलेगा. You should have transferred the residential house property. देखो दूसरी कोई बिल्डिंग की बात नहीं कही गई. Okay, so suppose if you are selling the office or any undertaking or any factory building,
Section 54's benefit is not available here. Property must be consist of what? The property must be consist of the house property. और वो भी हाउस प्रॉपर्टी कौन से पर्पज के लिए यूज होनी चाहिए? प्रॉपर्टी मस्ट बी कंसिस्ट ऑफ दी रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। ओके, और वो उस पर जो गेन हुआ है वो गेन कैसा होना चाहिए? देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसपे आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ होना चाहिए। ओके, नाउ इनकम ऑफ सच हाउस, देखो हाउस कैसा होना? इनकम ऑफ सच हाउस शुड बी चार्जेबल अंडर देयर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। मतलब आपके पास रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है और उसका लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट मतलब उसका पीरियड ऑफ होल्डिंग, हाउस लैंड और बिल्डिंग के केस में पीरियड ऑफ होल्डिंग कितना होगा तो लॉन्ग टर्म एसेट कही जाएगी, इट इज 24 मंथ्स। तो 24 मंथ से ज्यादा आपका पीरियड ऑफ होल्डिंग होना चाहिए। योर पीरियड ऑफ होल्डिंग मस्ट बी मोर देन 24 मंथ्स, then house property will be treated as long term capital asset. Not only that, that property should be a that kind of property whose income is chargeable under the head income from house property. मतलब suppose if you are having a house property, you know that in case of income from house property there are two houses which you considered as a self occupied, and self occupied properties income is exempt from tax. And suppose if you transfer that house, in that case section 54 deduction is not available. You can transfer a house on whose income you are paying the tax, okay, whose income is taxable under the head income from house property। और ऐसी कोई प्रॉपर्टी है जो हाउस प्रॉपर्टी है जिसपे आप इनकम टैक्स के अंदर हाउस प्रॉपर्टी के अंतर्गत टैक्स पे करते हो, इनकम इज टैक्सेबल, मतलब आपने उसको एग्जाम नहीं किया है, ऐसी हाउस प्रॉपर्टी है। और ऐसी हाउस प्रॉपर्टी को आपने ट्रांसफर किया जो लॉन्ग टर्म है, और आप असेसी कौन से हो? आप या तो इंडिविजुअल हो या एचयूएफ हो। तो इतनी रिक्वायरमेंट फुलफिल हुई तो आपको सेक्शन 54 का एग्जम्पशन मिलेगा। लेकिन एग्जम्पशन चाहिए आपको तो क्या करना पड़ेगा? मैंने आपको बताया यहाँ कुछ नया इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो देखो विच असेट मस्ट बी एक्वायर, आपको नई असेट बाई करनी पड़ेगी कैपिटल गेन के अमाउंट से। तो देखो अगर आपका कैपिटल गेन, व्हाट सेक्शन 54 से, इफ द कैपिटल गेन इज ग्रेटर देन 2 करोड़, आपको कैपिटल गेन 2 करोड़ से ज्यादा हुआ है तो आपको वन रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बाय करनी है। ओके, वन रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी यू आर सपोज टू बाय, ओके, इन इंडिया। तो इंडिया में आपको एक दूसरा घर खरीदना है, मतलब आपने एक घर बेचा, उसमें से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ, और वो कैपिटल गेन का अगर आपको एग्जम्पशन चाहिए तो आपको दूसरा घर बाय करना पड़ेगा, दूसरा एक घर बाय करना पड़ेगा इफ योर कैपिटल गेन अमाउंट इज ग्रेटर देन 2 करोड़। ओके, और अगर इफ योर कैपिटल गेन इज लेस देन, सॉरी, इफ कैपिटल गेन इज लेस देन 1 करोड़, मैंने ग्रेटर देन बोला। The capital gain is less than 2 crore, then you are supposed to buy one house property. अगर कैपिटल गेन का अमाउंट 2 करोड़ या उससे ज्यादा है, if the capital gain amount is सर greater ग्रेटर than, देन है। ग्रेटर देन है, लिखने में गलती कर है, जस्ट
2 मिनट, ये नहीं कुछ लिखा नहीं है दूसरों वाला पे, इसीलिए हम देख लेते हैं। इसमें 2 करोड़ के अंदर में कुछ लिखा नहीं है। Now let us come to the point. Sorry. So यहाँ ये पॉइंट क्या कहता है कि अगर आपका कैपिटल गेन का अमाउंट 2 करोड़ से ज़्यादा है तो आप एक ही हाउस बाय कर सकते हो, ओके। लेकिन अगर आपके पास कैपिटल गेन हुआ है और कैपिटल गेन का अमाउंट 2 करोड़ या उससे कम है, देन यू कैन बाय 2 हाउसेस ऑल्सो। मतलब रिक्वायरमेंट क्या है, आपको एक ही घर, मतलब अगर आपने एक घर बेचा है तो उसके सामने आपको कितना घर लेना है? लॉजिकली कंपलसरी रूल इज व्हाट? ओनली वन। एक के सामने आपको एक ही घर बाय करना है। लेकिन अगर आपका कैपिटल गेन का अमाउंट 2 करोड़ से कम हुआ है, ओके, सपोज दिस इज द सिचुएशन, then you have an option that instead of 1 you can buy 2 also. So this is the point what it says. लेकिन अगर आपका कैपिटल गेन का अमाउंट ग्रेटर देन 2 करोड़ है तो आपको 2 घर नहीं, लेकिन आपको एक ही घर बाय करना पड़ेगा। मतलब 2 करोड़ से कम वाले कैपिटल गेन में आप 2 घर बाय कर सकते हो। समझ में आया मैंने क्या बताया है? हेलो,
यस यस सर। ओके, तो अगर कैपिटल आपको रिक्वायरमेंट मिनिमम एक घर ही बाय करने की है, फिर से सुनिए बेटा, आपको मिनिमम एक कैपिटल गेन हुआ है, सेक्शन 54 का आपको एग्जम्पशन क्लेम करना है, देन एक घर के सामने आप एक घर बाय कर सकते हो। लेकिन कैपिटल गेन का अमाउंट 2 करोड़ से ज्यादा है तो आपको कंपलसरी एक ही बाय करना पड़ेगा। लेकिन कैपिटल गेन का अमाउंट 2 करोड़ से कम है तो आपको एक की जगह 2 घर लेने हैं, आप ले सकते हो। ओके, अभी बताओ। सर कंपलसरी બે ઘર લેવા જરૂરી નહીં ને એટલે कंपलसरी 2 घर लेवा જરૂરી નથી। कैपिटल गेन નો અમાઉન્ટ 2 કરોડ થી ઓછું હોય તો 2 ઘર તમે લઈ શકો। બાકી कंपलसरी કેટલા લેવાની રિક્વાયરમેન્ટ છે? એકની। ઓકે, ઇઝ ઇટ ક્લિયર નાउ? यस सर। યસ સર ओके, तो एक के सर 2 सामने करोड़ आपको करता एक વધારે હોય लेकिन तो 2 करोड़ से कम कैपिटल गेन है और आपको 2 घर बाय करने हैं तो आप बाय कर सकते हो। देखो, तो यहाँ पे देखो फिर से मैं सेक्शन 54 स्टार्टिंग से स्टार्ट करता हूँ। किसको एग्जाम्पशन मिलता है? इंडिविजुअल और एक्चुअल को। उसने कौन सी असेट सेल की होनी चाहिए? क्योंकि रेसिडेंशियल हाउस जो लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट है, मतलब पीरियड ऑफ होल्डिंग 24 मंथ से ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, और वो हाउस ऐसा होना चाहिए जिसकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल। ठीक है, तो ये रिक्वायरमेंट फुलफिल, एक घर आपने बेच दिया और उससे आपको सपोज गेन हुआ, ठीक है, और वो गेन पे आपको कैपिटल गेन बचाना है, और वो गेन कैसा होगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, और आपको कैपिटल गेन पे टैक्स भरने का बचाना है। यू वांट टू सेव दैट टैक्स, सो व्हाट यू हैव टू डू? यू हैव टू बाय वन हाउस। ओके, बट सपोज आपके पास आपका कैपिटल गेन का अमाउंट 2 करोड़ से कम है, अगर एक की जगह आप 2 घर छोटे छोटे लेना चाहते हो, आप बाय कर सकते हो, ठीक है। लेकिन 2 करोड़ से ज्यादा गेन हुआ ना, तो आपके पास ऑप्शन क्या है? यू कैन बाय ओनली वन हाउस। ये गवर्नमेंट अपना एंगल देखेगी। मैंने वही सोचा कि ऐसा क्या है कि ग्रेटर देन है, तो एक अगर बहुत बड़ा कैपिटल गेन हुआ होगा तो कोई क्या करेगा? बड़े बड़े 2 घर खरीद लेगा और कैपिटल गेन पे टैक्स ही नहीं पे करेगा 2 करोड़ से ज्यादा है। लेकिन 2 करोड़ से कम वाला है, उसको ऑप्शन दिया गया है कि अगर तुझे 2 बाय करना है तो आप बाय कर सकता है। अंडरस्टूड लॉजिक क्या है? कि 2 करोड़ से कम वाला है उसका टैक्स बचे, उसमें गवर्नमेंट को इंटरेस्ट है। लेकिन 2 करोड़ से ज्यादा गेन हुआ है तो उससे गवर्नमेंट ज्यादा टैक्स लेना चाहती है, तो उसको ऑप्शन दिया कि भाई तू तो एक ही कर सकता है, लेकिन 2 करोड़ से कम वाला है वो 2 करेगा तो चलेगा, नए घर बाय करेगा। इज इट क्लियर नाउ? सर तो 2 से ज्यादा नहीं हो सकते? हाँ, 2 से ज्यादा घर में अगर इन्वेस्टमेंट करे तो डिसअलाउ हो जाएगा? नहीं, तीसरा घर बाय किया तो डिडक्शन नहीं, एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। मतलब आपने पहले 2 घर में जितना इन्वेस्टमेंट किया है उतना आपको एग्जम्पशन मिलेगा, तीसरा करोगे तो नहीं। अब देखो यहाँ पे दूसरी एक नोट क्या लिखी गई है? इफ इन एनी असेसमेंट if assessee has exercised the option to purchase or construct the residential houses in India, he shall not subsequently entitled to exercise the option for the same assessment year or in any other assessment year। मतलब यहाँ कहने का क्या हो गया कि अगर आपने एक बार 54 का एग्जाम्पशन ले लिया और एक साल में आपने 2 घर बना लिए, तो उसके बाद लाइफ में कभी भी आपको दूसरे घर खरीदोगे, दूसरी बार कैपिटल गेन होगा और दूसरा घर खरीदोगे तो भी क्या ये 54 का एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा। 2 के केस में 2 ले लिए आप, 2 मैक्सिमम बाय कर सकते हो 2 करोड़ से कम कैपिटल गेन, ठीक है। तो वो केस के अंदर क्या होगा कि 2 करोड़ से कम कैपिटल गेन है, आपने सपोज समझ लो इन द प्रीवियस ईयर 2021-22, सपोज इन द प्रीवियस ईयर 2021-22 मेरे एक बहुत पुराना घर खरीदा था, मतलब आई हैव परचेज द हाउस इन द ईयर 2001 2002 में मैंने एक घर खरीदा, ठीक है। सपोज आई मे हैव परचेज दिस हाउस फॉर ₹50 lakhs, ठीक है, और ये घर को मैं बेच देता हूँ इन द ईयर 2021-22 में। दूसरा मतलब यही घर जो मैंने 2001-2 में बाई किया था वो 21-22 में उसको मैं बेच देता हूँ, और दैट आई एम सेलिंग इट फॉर ₹1 crore 50 lakhs। ओके, समझ लो कि मैंने इसका इंडेक्सेशन अप्लाई कर लिया
और इंडेक्सेशन, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म कैपिटल है गेन है, और इंडेक्सेशन सपोज मैंने अप्लाई किया, इंडेक्सेशन अप्लाई करने के बाद मेरी जो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आती है वो दैट इज 70 लाख। तो दिस इज माय सेल कंसीडरेशन। ओके, दिस इज माय सेल कंसीडरेशन। इसमें से मैं इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में लेस करता हूँ, तो दैट इज माय 70 लाख दैट आई एम डिडक्टिंग। So what is my capital gain? My capital gain is 80 lakh rupees. Okay, अभी ये 80 लाख रुपीस मेरा कैपिटल गेन है और इस पे मुझे टैक्स नहीं पे करना, तो मुझे एक नया घर बाय करना पड़ेगा। लेकिन मुझे एक की जगह दो बाय करने हैं तो भी मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा कैपिटल गेन का अमाउंट कितना है, 2 करोड़ से कम। तो सपोज मैंने समझ लो ये दो घर बाय कर लिए, एक घर मैंने 40 लाख का बाय किया और दूसरा भी एक घर 40 लाख का बाय किया, मतलब मैंने पूरा 80 लाख का जो भी कैपिटल गेन हुआ था उसको मैंने नए घर में इन्वेस्ट कर दिया। दो घर बाय कर दिए, अभी जितना इन्वेस्टमेंट करते हो ना उतना 54 में एग्जम्पशन मिलता है, वो आगे हम पढ़ रहे हैं थोड़ी देर के बाद। तो ये देखो मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना हुआ, 80 लाख, और 80 लाख जो भी गेन हुआ था दैट आई हैव इन्वेस्टेड इन 2 हाउसेस। ओके, so I will get the exemption in section 54. So what will be my taxable capital gain? My taxable capital gain will be nil because this much exemption I have get. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. ये Sir. आपको समझ में यहाँ तक ठीक है? So I hope that you have understood up to this point. अभी what is my point of discussion? Let us understand. कि suppose आपने एक बार वो घर खरीद लिए और आपने एक कर लिया, ठीक है? अभी सपोज इफ यू क्लेम द एग्जम्पशन वंस, एक बार आपने एग्जम्पशन क्लेम कर लिया, अभी ये 40 लाख में आपने ये नया जो घर खरीदा था ना, वो अभी नेक्स्ट ईयर में आप उसको नेक्स्ट ईयर में या उसके 2 साल के बाद ये घर को आप 80 लाख में बेच रहे हो, तो अगेन यू विल हैव अ लॉन्ग टर्म कैपिटल। 2-3 साल के बाद बेच रहे हो तो अगेन आपको सपोज समझ लो दूसरे 1-2 साल के बाद ये नया घर खरीदा था उसको बेच रहे हो। ओके, तो सपोज ये घर आप जो 40 लाख में लिया था वो आप इसको 80 लाख में बेच रहे हो, तो अगेन यू विल हैव अ कैपिटल गेन। सपोज समझ लो दूसरी बार आपको 35 लाख का कैपिटल गेन हुआ, अभी आप बोलोगे मैं 35 लाख का दूसरा एक घर बाय करूंगा, कैन यू क्लेम द एग्जम्पशन? आंसर इज नो। नाउ अगेन इन द नेक्स्ट ईयर यू कैन नॉट क्लेम द एग्जम्पशन बिकॉज आपने एक बार में 2 घर खरीद लिए, तो उसके बाद आपको 54 का एग्जम्पशन दूसरा कोई भी घर बेचने पे नॉट इन दिस ईयर एंड नॉट इन एनी अदर प्रीवियस ईयर, ये साल में तो ठीक, लेकिन दूसरे आने वाले प्रीवियस ईयर में भी आप दूसरा कोई घर खरीदोगे कैपिटल गेन बचाने के लिए 54 का एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। सो व्हाट दिस पॉइंट इज, देखो आई एम रीडिंग अगेन, if in any assessment year if assessee has exercised to option to purchase the or construction the true residential house in India, then he shall not be subsequently entitled to option for the same in the same assessment year, और देखो दूसरा क्या बोला, इन एनी अदर असेसमेंट ईयर। तो एनी अदर असेसमेंट ईयर में भी आपको ये दूसरा घर खरीद के जो कैपिटल गेन बचाने का आपका टारगेट है वो नहीं कर सकते। देखो यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया है कि assessee has availed the option to claiming the benefit under section 54 and purchase is the 2 residential house in Jaipur and Jodhpur for in respect of the capital gain of 1.50 crore arising from transfer of the residential house in Mumbai। मतलब उसने एक मुंबई में घर बेचा, कितने में, जितने भी बेचा होगा, लेकिन उसको वो बेचने के बाद कैपिटल गेन कितना हुआ, 1 करोड़ 50 लाख। ये 1 करोड़ 50 लाख का कैपिटल गेन बचाने के लिए उसने दूसरे 2 घर बचा खरीद लिए एक ही साल में, एक जयपुर में बाय किया, एक जोधपुर में बाय किया, ठीक है। अभी क्या कर रहा है, then he will not be entitled to avail the benefit of section 54 again in respect of purchase of 2 residential houses in Pune and Baroda। अगर पुणे एंड बड़ौदा में अगर दूसरे 2 हाउसेस खरीद रहा है, ओके, इन रिस्पेक्ट ऑफ द कैपिटल गेन 1 करोड़ 20 लाख अराइजिंग ऑन ट्रांसफर ऑफ द रेसिडेंशियल हाउस इन जयपुर इन 23-24, तो 23-24 में फिर क्या करता है, 1 करोड़ 20 लाख का उसको दूसरा कैपिटल गेन होता है, तो उस टाइम पे वो दूसरे 2 घर खरीदता है। तो देखो ये 2 घर खरीदने के आपको कैपिटल गेन बचाने का ऑप्शन आपको सिर्फ 1 साल में मिलता है। अभी मतलब इसका मतलब क्या हुआ, एक घर खरीद के आप कैपिटल गेन फ्यूचर में भी बचा सकते हो, लेकिन 2 घर खरीद के कैपिटल गेन बचाने का ऑप्शन आपको सिर्फ लाइफ में एक ही बार मिलेगा। इज इट क्लियर? और वो भी कब मिलेगा, व्हेन योर कैपिटल गेन अमाउंट इज लेस देन 2 करोड़।
देन एक बार लाइफ में आप दो घर साथ में खरीद के आप क्या कर सकते हो, कैपिटल गेन बचा सकते हो। फिर उसके बाद जो नए घर खरीदे थे, ठीक है, उसमें से अगर आपने एक घर बेचा और उसके सामने एक दूसरा घर खरीदा, कैपिटल गेन का बेनिफिट मिलेगा। लेकिन एक घर खरीदा, बेचा और उसके सामने अगेन यू हैव बाय अनदर 2 हाउसेस, नो बेनिफिट विल बी अवेलेबल। तो બે ઘર વેચીને કેપિટલ ગેઇન બચાવવાનો બેનિફિટ તમને લાઈફમાં ખાલી એક વખત મળશે. ઓકે, so see, this is the point. I hope that you all have understood this. Now see, देखो ये आपको मैंने बोला कि आपको एक घर बेचते हो, उससे आपको कैपिटल गेन होता है, और कैपिटल गेन अगर 2 करोड़ से ज्यादा है तो आपको एक नया घर खरीदना है। 2 करोड़ से कम है तो एक नया खरीदोगे, एक ही करोगे चलेगा, लेकिन आपको 2 करना है तो भी चलेगा। तो ये 2 करने का ऑप्शन आपको लाइफ में एक ही बार मिलेगा। लेकिन ये नया घर आपको खरीदना कब है, तो यहाँ पे लिखा है टाइम लिमिट फॉर एक्विजिशन ऑफ न्यू असेट। तो नई असेट परचेस आपको कितने टाइम के अंदर कर देनी है, तो विद इन 1 ईयर बिफोर द ट्रांसफर, मतलब आपने ये साल में ट्रांसफर किया, उसके 1 साल पहले अगर आप, मतलब सपोज आई एम सेलिंग द हाउस इन द ईयर 2021-22, बट इफ आई हैव परचेज द हाउस 1 ईयर बिफोर दिस ट्रांसफर, मतलब 20-21 માં પણ મને એક નવું ઘર ખરીદી લીધું હશે એડવાન્સમાં, તો પણ મને 54 નો બેનિફિટ મળશે. સો 1 year before, if I can purchase 1 or 2 new houses, or if I see, और विद इन 2 years आफ्टर द ट्रांसफर, या तो फिर ट्रांसफर करने के 2 साल के बाद भी, मतलब विद इन 2 years, जिस दिन ट्रांसफर किया उसके 2 साल के अंदर नया घर खरीद लो, या तो फिर आप नया घर का कंस्ट्रक्शन करवा लो विद इन 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर, मतलब जिस दिन ट्रांसफर किया उसके 1 साल पहले आप खरीद लो, या तो फिर जिस दिन ट्रांसफर किया उसके 2 साल के अंदर आप नया खरीदो, या तो जिस दिन ट्रांसफर किया उसके 3 साल के अंदर आप नया कंस्ट्रक्ट करो। ओके, तो दिस इज द रूल दैट आपको नया घर कब खरीदना है। ओके, अभी कितना एग्जम्पशन आपको मिलेगा, तो हाउ मच एग्जम्पशन यू विल गेट, तो इन्वेस्टमेंट इन ए न्यू हाउस और कैपिटल गेन दोनों को कंपेयर करना है, और विच एवर इज लोअर दैट विल बी एग्जाम फ्रॉम टैक्स। ओके, मतलब देखो सपोज समझ लो कि मुझे कैपिटल गेन, एक हाउस प्रॉपर्टी सेल की और उस पर मुझे 80 लाख का कैपिटल गेन हुआ, और मैंने, तो ये कैपिटल गेन मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। अभी एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे मुझे टैक्स नहीं भरना है, तो मैं क्या करता हूँ, एक नया घर खरीदता हूँ, और वो दैट न्यू हाउस आई एम परचेसिंग फॉर ₹70 लाख। So how much exemption I can get? Say I can get the exemption of amount of capital gain or amount of investment, whichever is lower. तो दोनों में से lower कितना है, 70 lakh. तो 70 lakh will be exempt from tax. Okay, and here 10 lakh will be again taxable. कि मारू नवा घर में investment कितना, तो the new investment I have made. Okay, so new house I have purchased for ₹70 lakh, so I can get the exemption up to 70 lakh, and this remaining 10 lakh will be taxable. Okay, अभी आप समझ लो यही सिचुएशन। देखो आपको क्या करना है, कैपिटल गेन का अमाउंट और अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट दोनों को कंपेयर करना है, और विच एवर इज लोअर दैट इज अलाउड एज एग्जम्पशन। सपोज आई एम हैविंग ए कैपिटल गेन ऑफ 80 लाख। ओके, और सपोज मैं एक कैपिटल गेन पे मुझे टैक्स नहीं पे करना है, आई एम बाइंग द न्यू हाउस ऑफ ₹1 करोड़, तो 1 करोड़ का नया घर खरीदता हूँ। कैन आई क्लेम द एग्जम्पशन ऑफ एंटायर 1 करोड़? नो, इन दिस केस अगर मैं नया घर 1 करोड़ का बाय करूंगा तो 1 करोड़ का थोड़ा एग्जम्पशन मिलेगा। मारे कैपिटल गेन पर टैक्स कितना पर भरવાનો છે, 80 लाख पर, तो एग्जम्पशन पर કેટલું મળશે? So you have to compare these two. This is the amount in new investment and this is the capital gain. तो ये दोनों में से लोअर कौन सा है? लोअर इज 80 lakh. So your capital gain was 80 lakh and your investment is 1 crore. So you will not get the exemption of 1 crore, but you will get the exemption of 80 lakh only. So here you have to pay the capital gain nil. अगर आपने कम इन्वेस्टमेंट किया है तो ये डिफरेंस पे आपको क्या करना पड़ेगा? You have to pay the tax. So how much capital gain exemption is available? So you have to compare the amount of investment in the new house और houses. अगर 2 खरीद ली है तो इसीलिए बोला है houses, और amount of capital gain whichever is lower that much will be exempt. Okay, अगर आप समझ लो consequences of transfer of newly acquired asset within 3 years, मतलब देखो यहाँ पे क्या बोला है कि आपने जो नया घर आपने खरीदा है, एक घर बेचा, उस पर कैपिटल गेन हुआ, वो कैपिटल गेन पे टैक्स बचाने के लिए मैंने नया घर खरीदा, तो ये नया घर खरीदा है ना, उसको मुझे मिनिमम 3 साल तक रखना है मेरे पास। 2-3 साल से पहले बेच दिया तो क्या होगा,
द एग्जम्पशन ग्रांटेड विल बी टेकन बैक, आपको जो भी एग्जम्पशन मिला है वो वापस ले लिया जाएगा। एंड फॉर कंप्यूटिंग द शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ट्रांसफर ऑफ द न्यू असेट, तो देखो कॉस्ट ऑफ द न्यू हाउस इज इक्वल टू cost of the acquisition minus capital gain exemption earlier that you have to do। मतलब समझ लो यहाँ पे क्या हो सकता है। तो एक दूसरा एग्जांपल आपको देखिए मैं समझाता हूँ तो यू विल गेट इट। सपोज समझ लो कि मैंने एक घर मेरा ये साल में बेचा, कितने में बेचा? 80 लाख में, ठीक है। 80 लाख में बेच, सॉरी 80 लाख में नहीं, मैंने कोई अमाउंट में बेचा और उस पर मुझे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना हुआ? 80 लाख। Now, in order to save this capital gain, I have purchased another house for rupees 80 lakh। मतलब ये मेरा नया घर मैंने बाय कर दिया 80 लाख में। तो दिस इज माय न्यू इन्वेस्टमेंट इन द करंट ईयर। ये मैंने न्यू इन्वेस्टमेंट किया नए घर में। देखो तो करंट ईयर में तो क्या हुआ, मुझे 80 लाख का कैपिटल गेन हुआ था, लेकिन वो पूरा कैपिटल गेन मैंने नए घर में इन्वेस्ट कर दिया। तो ये साल में मेरा कैपिटल गेन क्या हो गया? नील। So in this year I have to pay no tax on the capital gain because this much investment is allowed as a exemption under section 54। So I will claim the exemption under section 54 in this year। अभी देखो ये now the new asset is get generated। So अभी मेरा नया घर हो गया 80 लाख का। ये नया घर 80 लाख का मैंने परचेस किया से इन द ईयर 2020 122, ये प्रीवियस ईयर में मैंने नया घर बाय कर दिया है, ठीक है। तो ये मेरी ड्यूटी क्या है? मेरी व्हाट इज माय ड्यूटी? आई हैव टू होल्ड दिस हाउस फॉर 3 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज। तो जिस दिन परचेज किया उससे 3 साल तक मुझे घर मेरे पास रखना है, उससे पहले मैं नहीं बेच सकता। और देखो मतलब ये साल में सपोज मैंने 1 जनवरी 2022 को खरीदा, तो 1 जनवरी 22 से लेके 1 जनवरी 23, 1 जनवरी 24, मतलब ये एक साल होगा, ये दूसरा साल होगा, और 1 जनवरी 24 से लेकर 1 जनवरी 2020, तो ये 3 साल। मतलब 1 जनवरी 25 तक ये नया घर में बेच नहीं सकता, लेकिन मैंने बेच दिया तो क्या होगा? तो नया घर सपोज मैंने बेचा तो ये जो भी मेरा कैपिटल गेन मैंने का एग्जम्पशन मैंने आगे लिया था दैट विल बी रिवर्स। कैसे रिवर्स होगा? समझ लो ये नया घर जो मैंने लिया था दैट आई एम सेलिंग इट फॉर ₹1 करोड़, और 3 साल से पहले, मतलब 3 साल से पहले मैंने बेच लिया। So see that suppose new house that which was I have purchased that I am selling it for ₹2 crore। अभी उसको मैंने परचेस कितने में किया था? 80 लाख में। लेकिन उसको मैं क्या करता हूँ, तो ये नया घर जो मैंने लिया था उसको मैं बेच रहा हूँ, सेल कंसिडरेशन मेरा कितना हो गया? 1 करोड़। So my new sale consideration is 1 crore। Now what was my duty? I have to hold this house for 1 January 2025, और मैंने उसको बेच दिया बिफोर दी 1 जनवरी 25, मतलब समझ लो ये 24 में मैंने बेच दिया। मतलब यहाँ पे मुझे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। मतलब 24 महीना थी सपोज ऊँचो पीरियड से, तो मैंने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन किया। तो व्हाट देखो सेल कंसिडरेशन में से आप क्या लेस करते हो कैपिटल गेन करने कैलकुलेट करने के लिए? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपकी कितनी आप लोगे? देखो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपको नए घर का कैपिटल गेन गिनते टाइम पे कितना लेना है? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस कैपिटल गेन एग्जम्प्ट अर्लियर। तो आपका देखो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, नया घर भी आपने कितने में बाय किया था? 80 लाख में, और आगे आपने एग्जम्पशन कितने का क्लेम किया था? 80 लाख में। मतलब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस एग्जम्पशन, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वाज 80 लाख, और उसमें से एग्जम्पशन भी आपका कितना था? 80 लाख का। मतलब ये दोनों का डिफरेंस कितना आया? 0। मतलब क्या हुआ? देखो यहाँ आपने नया घर खरीदा और उसको नया घर को बेचा 1 करोड़ में, और उसमें से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपको कितनी लेनी पड़ेगी? नील, क्योंकि आपने खरीदा था 80 में और पूरा 80 का आगे एग्जम्पशन क्लेम किया, और ये घर को आपने 3 साल से पहले बेचने की कोशिश, मतलब बेच ही दिया 3 साल से पहले। तो यहाँ पे क्या होगा? देखो हमारा सेल कंसिडरेशन 1 लाख 1 करोड़ मिली, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपने कितनी रखी? 1 करोड़। मतलब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना कैलकुलेट किया हमने? 0, क्योंकि 80 लाख में आपने बाय किया था और आगे एग्जम्पशन उसमें से जो भी लिया है उसको लेस करो, तो पूरा लेस हो गया। तो ये 1 करोड़ क्या होगा? देखो ये 1 करोड़ ये साल में टैक्सेबल हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? देखो શું થયું? આગળ તમે 1 કરોડનું 80 લાખનું એક્ઝમ્પશન લીધું હતું એ રિવર્સ થઈ ગયું, અને આ નવા ઘર પર તમને જે 20 લાખનો ગેઇન થયો એ પણ ટેક્સેબલ થઈ જશે। એનો મતલબ ટોટલ 1 કરોડ ટેક્સેબલ થશે।
આગળનું 80 લાખનું એક્ઝમ્પશન રિવર્સ થઈ ગયું અને 80 માં લઈને 1 કરોડમાં વેચ્યું તો બીજા 20 લાખ રૂપિયાનો ગેઇન થયો, એ પણ ટેક્સેબલ થશે. ટોટલ ટેક્સેબલ કેટલા થશે? પૂરા 1 કરોડ ટેક્સેબલ થઈ જશે. મતલબ વોટ ઇઝ યોર ડ્યુટી? સપોઝ ઇફ યુ પરચેઝ ધ ન્યू हाउस, then it is your duty that you are supposed to hold that house for 3 years. तो 3 साल में तक आपको होल्ड करना पड़ेगा. अगर विद इन 3 years if you are selling, then exemption granted will be taken back. तो exemption कैसे टेकन बैक किया जाएगा कि नया घर है उस पर हमें कैपिटल गेन गिनना है, तो नए घर का कैपिटल गेन गिनोगे, उसकी सेल कंसिडरेशन में से आपको क्या लेस करना पड़ेगा? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. लेकिन उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लोगे? क्योंकि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो भी है वो और अर्लियर एग्जम्पशन आपने क्लेम किया उसमें से आप लेस कर दो, तो कॉस्ट ऑफ न्यू हाउस जो भी आएगी वो जीरो ही आ जाएगी. ओके, तो वो केस में क्या होगा? पूरा कैपिटल गेन टैक्सेबल हो जाएगा. अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? हेलो? Yes, sir. यस सर. ओके, नाउ सी, देखो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, देखो हम एग्जांपल भी करते हैं. सपोज कैपिटल गेन ऑफ 7 लाख आपको कैपिटल गेन हुआ है. ओके, और आपने नया घर आपने खरीदा 9 लाख में, तो एग्जम्पशन कितना मिलेगा? कैपिटल गेन 7 lakhs. और इन्वेस्टमेंट इन द न्यू हाउस विच यू ऑलरेडी 7 लाख इज एग्जाम, तो यहाँ 7 लाख आपकी एग्जाम हो गए. ठीक है, और सपोज कैपिटल गेन इज 7 लाख और नए घर में आपने इन्वेस्टमेंट किया 5 लाख का, तो एग्जाम्पशन दोनों में से जो लोअर है कितना एग्जाम्पशन मिलेगा? 5 लाख का. ठीक है, अभी ये एग्जाम्पल आगे कंटिन्यू किया. कंटिन्यूइंग द एग्जाम्पल, इफ द न्यू हाउस इज सोल्ड फॉर 2 years फॉर 12 लाख, तो क्या होगा? देखो ये एग्जाम्पल नंबर 2 है, उसको कंटिन्यू किया है. नया घर अगर आपने जो लिया था उसको 12 लाख में आप 3 साल पहले बेच देते हो, 3 साल तक होल्ड नहीं किया, तो आपका न्यू सेल कंसिडरेशन न्यू कितना होगा? नए घर का 12 लाख सेल कंसिडरेशन दिया है, उसमें से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आप कितनी लोगे? देखो ये नया घर आपने कितने में एक्वायर किया था? सपोज इफ यू एक्वायर, ये पहले वाला एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 1 को कंटिन्यू किया था कि आपको 7 लाख का कैपिटल गेन हुआ था और उसमें से आपने 9 लाख का नया घर लिया, मतलब आपने आगे एग्जम्पशन कितना क्लेम कर लिया था? 7 लाख का. तो देखो ये नए घर की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी थी? 9 लाख, और उसमें से आपने आगे एग्जम्पशन कितना क्लेम किया था? 7 लाख. ये दोनों का डिफरेंस आप निकालोगे, वही कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी. मतलब देखो यहाँ 12 लाख में से पूरे आप नया घर आप बाय करते, मतलब 12 लाख आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है और नया घर आपने बाय किया कितने में किया था? 9 लाख में. लेकिन 12 में से सिर्फ 9 नहीं लोगे, लेस हो गए, 9 में से आपने आगे जो 7 लाख का एग्जम्पशन ले लिया था वो भी लेस हो जाएगा. तो मतलब आपको आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी होगी? सिर्फ 2 लाख. 12 में से सिर्फ 2 लेस हो जाएंगे, तो 10 लाख विल बी टैक्सेबल. समझ में आया ये वाला पूरा एग्जाम्पल? देखो ये पहला एग्जाम्पल का ही पूरा एक्सटेंशन है. फिर से मैं बताता हूँ कि आपके पास एक घर था, उसको बेच दिया आपने. आपके पास एक घर था, आपने बेच दिया और उस पर आपको कैपिटल गेन हुआ 7 लाख. ओके, ये यहाँ 7 लाख का में आपको कैपिटल गेन आपको सपोज समझ लो करंट ईयर में हुआ, और ये 7 लाख के कैपिटल गेन पे करंट ईयर में टैक्स ना भरना पड़े, इसीलिए आपने नया हाउस बाय किया 9 लाख में. 9 लाख में 9 घर તમે લઈ લીધું. 7 લાખ અને 9 લાખ બેમાંથી લોઅર કયા છે? તો 7 લાખ. તમને આ વર્ષે કેટલો કેપિટલ ગેન એક્ઝામ થઈ ગયો? ઓકે, 7 લાખ. 7 લાખનું એક્ઝમ્પશન તમે આ વર્ષે ક્લેમ કરી દીધું. હવે સમજી લો કે 2 વર્ષ પહેલા, મતલબ 3 વર્ષ તમારે હોલ્ડ કરવાનું હોય નવું ઘર, અને તમે નવું ઘર હોલ્ડ ના કર્યું, ધેટ યુ હેવ સોલ્ડ ફોર ₹12 લાખ. તો 12 લાખમાં નવું ઘર તમે 3 વર્ષ પૂરા થતા પહેલા 2 વર્ષની અંદર વેચી દીધું, તો તમારું સેલ કન્સિડરેશન કેટલું થઈ ગયું? 12 લાખ. तो ये 12 लाख इज योर सेल कंसिडरेशन. लेकिन देखो नया घर पे कैपिटल गेन गिनते हो तो सेल कंसिडरेशन में से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेस करते हैं. तो मैंने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो 9 लाख लेस की, कि 9 लाख पूरा लेस नहीं होगा, आपने आगे जो एग्जम्पशन क्लेम किया है वो इसमें से लेस करना पड़ेगा. देखो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन न्यू, कॉस्ट ऑफ न्यू हाउस क्या रहोगे? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस एग्जम्पशन क्लेम अंडर सेक्शन 54 अर्लियर. अर्लियर आपने 7 लाख का एग्जम्पशन लिया था वो रिवर्स हो जाएगा, तो इसमें से 7 लाख लेस करोगे. 9 में से 7 का जो डिफरेंस आया दैट इज 2 लाख. सो 2 लाख आई एम डिडक्टिंग फ्रॉम हियर. सो 12 और 10 का 2 लाख का जो डिफरेंस दैट इज 10 लाख, दैट इज माय शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, क्योंकि 24 महीने से पहले मैंने बेच दिया, तो इट विल बी अ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड इट विल बी टैक्सेबल. ओके, नाउ सम अदर पॉइंट्स आर देयर. यस, हेलो सर अगर हम 24 मंथ्स वाला क्राइटेरिया लेते हैं तो यहाँ पे 2 इयर्स के बाद बेचा है तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं होना चाहिए? विद इन 2 years लिखा है. देखो यहाँ पे क्या लिखा है? सोल्ड आफ्टर, इफ द न्यू हाउस वाज सोल्ड आफ्टर 2 years फॉर 12 लाख.
ओके, ये सिर्फ आपको ये एग्जाम्पल एक्सप्लेन करने के लिए बोला। बिफोर ये आफ्टर की जगह आप बिफोर कर दीजिए, आपकी बात सही है, बिफोर आफ्टर है ना, यू मेक द करेक्शन इन योर मटेरियल एंड आफ्टर की जगह बिफोर कर दीजिए, नहीं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन गिनना पड़ेगा। तो आफ्टर 2 इयर्स नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या होना चाहिए, बिफोर होना चाहिए, तो यहाँ बिफोर कर दीजिए, तो आपका ये पूरा एग्जाम्पल राइट जाएगा। ठीक है, यू मेक द करेक्शन इन योर मटेरियल, ये आफ्टर की जगह बिफोर कर दीजिए। ओके, अभी आप देखो, ये एक पॉइंट मैंने आपको बताया कि आपको एक नया घर है, ये कितने पीरियड में बाय करना है, वो आपको मैंने बताया कि 1 साल पहले, 1 साल पहले बाय कर लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, या तो फिर 2 साल के अंदर आपको नया घर खरीदना है, या तो फिर आपको 3 साल के अंदर, जिस दिन आप ट्रांसफर करते हो उसके 3 साल के अंदर नया घर कंस्ट्रक्ट करना है। ओके, तो ये आपने नया घर आपने खरीदा नहीं है या तो फिर नया घर कंस्ट्रक्ट नहीं किया, तो करंट ईयर में आपको इसका एग्जम्पशन मिलेगा, यस और नो? देखो, करंट ईयर में आपने नया घर खरीदा नहीं है, करंट ईयर में आपने नया घर कंस्ट्रक्ट नहीं किया, आप बोलोगे मैं मेरे पास तो 3 साल का टाइम है ना, मैं बना लूंगा, तो फिर मेरे साथ पास 2 साल का टाइम है ना, मैं नया खरीद लूंगा, ऐसा अगर आप सोच रहे हैं तो एग्जम्पशन करंट ईयर में मिलेगा। देखो, करंट ईयर में आपको एग्जम्पशन मिलता है, लेकिन ये इसके जो पैसे होते हैं ना, ये कैपिटल गेन के, उसको एक सेपरेट बैंक अकाउंट ओपन करके वहां पे वो पैसे जमा करते हैं, तो ही आपको एग्जम्पशन मिलता है। કે તમને અહીંયા ટાઈમ આપે છે કે તમે આજે ટ્રાન્સફર કર્યું કેપિટલ ગેઇન થયો, હવે આજે ને આજે તમારે નવું ઘર નથી ખરીદવું, પણ તમે વિચારો કે મને તો ઇન્કમ ટેક્સ એક્ટે 2 વર્ષનો ટાઈમ આપે છે કે 2 વર્ષની અંદર હું નવું ઘર ખરીદી લઈશ, तो ये 2 साल तक अगर आप नहीं खरीदते हो, ओके, ये साल में एग्जम्पशन करते हो, પછી તમે જોશો કે 2 વર્ષ પછી કોણ જોવા આવવાનું છે। લેટ મી રાઇટ ડાઉન ધ ન્યू हाउस दैट आई विल परचेज इन आफ्टर 2 years। जस्ट हेलो, हाँ, एक मिनट है, जस्ट શું બનાવે છે એના પર આધારિત। तो देखो, मैं क्या बता रहा था आपको कि ये जो नया घर है, आपको टाइम दिया है यहाँ पे कि यू आर सपोज टू बाय द न्यू हाउस विदिन 2 years फ्रॉम द डेट आफ्टर द ट्रांसफर, और यू हैव टू कंस्ट्रक्ट द न्यू हाउस आफ्टर द 3 years फ्रॉम द ट्रांसफर। સારું, ચાલ, મારું લેક્ચર ચાલુ છે ને, હલો, હા, ચાલ, 9, 9:30, 10 થશે, બરાબર, એટલે તમે જમી લેજો, મારી રાહ જોશો નહીં। હા, તું જમી લેજો, બરાબર, મારી રાહ જોશો। અરે, હા, હા બેટા, કેવું છે? હા, વહેલું આવીશ, હા બેટા, હા, હે ને, હા, હા, ચાલ, હા બેટા, મારો હાલ તો ક્યારનું સારું બેટા, હું લેતો આવીશ હો તારા માટે, હા, હે ને, હું આવું છું હમણાં થોડી વારમાં, હા, હા, ચાલ, બાય, જય અંબે। આજે ઉઠી પહેલા તો હું નીકળી ગયો તો હજી ઘેર ગયો જ નહીં। તો see what I was discussing with you, that within am I audible? Hello? यस सर, Yes, यस sir. सर। यस सर। वो 2 साल के अंदर यस नया घर सर। बनाना है या तो फिर 3 साल में बनाना है। तो अगर समझ लो आपने बोला ये साल में मुझे कैपिटल गेन हो गया, फिर आप सोचते हो कि 2 साल के बाद मैं नया घर खरीदूंगा या तो फिर 3 साल के अंदर मैं नया घर कंस्ट्रक्ट कर दूंगा, तो आप सोचो कि कौन जुआ आव्हान होते हैं, लकी ड्रॉ की कैपिटल गेन एग्जेम्पशन ले लो, तो ऐसा नहीं होता है। आपको नया घर आप 2 साल के अंदर खरीदना चाहते हो या तो फिर 3 साल के अंदर नया घर आप बनाना चाहते हो, तो ये जो पैसे हैं कैपिटल गेन के, उसको आपको एक सेपरेट बैंक अकाउंट ओपन करके वहाँ डिपॉजिट करवाना होता है। तो उसके लिए एक पॉइंट है, वो हम पहले देखते हैं, फिर आफ्टर अदर पॉइंट वी विल डिस्कस। तो क्या होता है, देखो, ये यहाँ पे कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम है, तो सी स्कीम ऑफ डिपॉजिट। ओके, तो फॉर सेक्शन 54 भी, आगे के भी सेक्शन में भी यही पॉइंट आता है, 54D, 54F। ओके, capital gain exempt to the extent of investment in the capital gain
or need sale consideration in respect of the asset within the specified time limit. Okay, but if such investment is not made before due date of filing of return, then capital gain or need sale consideration, if 54 में पूरा consideration होता है, has to be deposited under the capital gain account scheme to get the exemption. मतलब आप ये 2 साल में नया घर बनाते नहीं हो या तो आपका प्लानिंग है कि सब कुछ समझ लो, हम एक्सप्लेन करेंगे। तो ये 54 में थोड़ा टाइम लगेगा, फिर आगे के सेक्शन फटाफट हो जाएंगे। तो सपोज दिस इज माय प्रीवियस ईयर, ओके, से 2021-22 ये मेरा प्रीवियस ईयर है। ये साल में मैंने 50 लाख रुपए का कैपिटल गेन किया, ओके। तो अभी ये 50 लाख के कैपिटल गेन पे मुझे अगर टैक्स नहीं पे करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये साल है, इसके आगे के एक साल में मैंने एक नया घर ऑलरेडी खरीदी रखा है, सपोज 70 लाख का आगे के साल में, तो आई कैन क्लेम दैट कि हमारी पास ऑलरेडी मैं इन्वेस्टमेंट घर खरीदता पहला खरीद दी थी, तो आई कैन क्लेम। तो देखो 70 लाख इज योर न्यू इन्वेस्टमेंट और आपको गेन कितना हुआ है 50 लाख का, तो इन्वेस्टमेंट और कैपिटल गेन विच एवर इज लोअर इज एग्जाम, मतलब ये साल में आपके पूरे 50 के 50 एग्जाम हो जाएगी, क्योंकि आपने एक साल पहले एक घर ले रखा है। ये आपका पहला ऑप्शन था। लेकिन आपके पास दूसरे ऑप्शन क्या है कि सपोज आपने ये इन्वेस्टमेंट एक साल पहले नहीं कर रखा है, तो आपके पास ऑप्शन है कि ये जो जिस साल में सेल किया, जिस साल में आपने ट्रांसफर किया, उसके 2 साल के अंदर आप नया घर आप बाय करो, बाय अ न्यू हाउस, ओके, विदिन 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर, विदिन 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर, या तो फिर नया घर आप कंस्ट्रक्ट करो विदिन 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। तो ये आपके पास ऑप्शन है, लेकिन ये आप कंस्ट्रक्ट करोगे या नहीं करोगे गवर्नमेंट को पता नहीं है। तो आपका ये करंट ईयर कौन सा है, करंट ईयर इज 2021-22। तो आपको लॉजिकली ये इन्वेस्टमेंट कब कर देना है कि सपोज ये आपका जो असेसमेंट ईयर आता है, ये असेसमेंट ईयर आने से पहले, मतलब असेसमेंट ईयर में आप रिटर्न फाइल करोगे, सपोज योर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न इज 30 सितंबर या 31 जुलाई, 30 सितंबर इज योर ड्यू डेट। तो 30 सितंबर से पहले आपको नए घर में इन्वेस्टमेंट कर देना पड़ेगा। मतलब नया घर आपने ले लिया है तो आपको ये सपोज नया घर आपने 30 सितंबर से पहले बाय कर दिया असेसमेंट ईयर में, और ये वो नया घर आपने बाय किया सपोज से ₹40 लाख में, तो नया घर आपने 40 लाख में बाय कर लिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको 40 लाख का एग्जम्पशन मिल जाएगा और 10 लाख कैपिटल गेन टैक्सेबल हो जाएगा। सपोज नया घर आपने 70 लाख में लिया है, 70 लाख इज योर इन्वेस्टमेंट, कैपिटल गेन इज 50 लाख, ये दोनों में से जो लोअर है दैट इज एग्जाम, मतलब पूरा 50 का 50 एग्जाम हो जाएगा एंड यू डोंट हैव टू पे द कैपिटल गेन इन दिस ईयर। लेकिन आपने ये इन्वेस्टमेंट आपको ये कब तक, नया घर कब खरीद लेना है, आपको बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। अभी आपने नया घर ना तो खरीदा ना इन्वेस्टमेंट ना कंस्ट्रक्ट किया ये पीरियड के अंदर, तो आपको क्या करना है, आपको ये कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम जो है इसके अंदर ये कैपिटल गेन के पैसे आपको पूरा डिपॉजिट कर देना है। और अगर आपने डिपॉजिट कर दिया है तो आपको तुरंत एग्जम्पशन ये साल में मिल जाएगा। फिर ये पैसे का यूज करके आप 2 साल में या 3 साल, 2 साल में नया खरीदो या तो फिर 3 साल में नया बना लो। तो पैसे आपको ये अकाउंट में डिपॉजिट करके उसका प्रूफ रखना पड़ता है कि फिर मैंने पैसे कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में डिपॉजिट कर दिए। अगर वहाँ डिपॉजिट नहीं किया तो एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। यू हैव, अगर 2 साल के अंदर खरीदना है, 3 साल के अंदर नया कंस्ट्रक्ट करना है, तो आपको प्रूफ देना पड़ेगा कि भाई मैंने अभी तक नहीं खरीदा बट आई एम पुटिंग दैट मनी इन दिस पर्टिकुलर अकाउंट। यू हैव टू डिपॉजिट एंड यू हैव टू कीप द बैंक स्टेटमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर अकाउंट एंड देन यू कैन क्लेम द एक्सम्पशन। कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में आप पैसा लेके एक्सम्पशन क्लेम, अभी वहाँ पे जमा करवा दिया मतलब एग्जम्पशन आपने ले लिया, लेकिन आपको वो जो टाइम बोला है वो टाइम के अंदर तो आपको नया घर खरीदना ही पड़ेगा। હવે ખાતામાં પૈસા પડ્યા છે, હવે એમાંથી તમે ગમે ત્યારે 2 વર્ષમાં કે 3 વર્ષમાં નવું ઘર ખરીદો કે કન્સ્ટ્રક્ટ કરો. નાઉ સી ટાઈમ લિમિટ ફોર એક્વાયરિંગ ધ ન્યू અસેટ, तो सच डिपॉजिट शुड बी मेड बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। तो आपको ये तो मैंने बताया कि फाइलिंग ऑफ रिटर्न से पहले पैसा वहाँ डिपॉजिट कर दो, ओके, और ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ ROI, मतलब जिस दिन आप रिटर्न फाइल करते हो या तो फिर वॉट एवर इज द ड्यू डेट, दोनों में से जो जल्दी आता है। सपोज रिटर्न फाइलिंग की डेट 30 सितंबर है, लेकिन मैं रिटर्न जुलाई में फाइल करता हूँ तो जुलाई से पहले डिपॉजिट करना पड़ेगा, ओके। और सपोज मैं लास्ट दिन ही रिटर्न फाइल करता हूँ तो लास्ट दिन से पहले मुझे रिटर्न मतलब वो पैसे वो वहाँ डिपॉजिट करवाना पड़ेगा। और प्रूफ ऑफ सब डिपॉजिट शुड बी अटैच अलॉन्ग विद द रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न के साथ मैंने वो पैसा वो खाते में जमा करा दिया, उसका प्रूफ अटैच करके रिटर्न फाइल करना।
ओके, और एक डिपॉजिट कैन बी विड्रॉन फॉर द स्पेसिफाइड पर्पस, फिर वहां से आप पैसा विड्रॉ तो कर सकते हो, लेकिन कौन से पर्पस के लिए? सिर्फ नया घर खरीदने के लिए या तो फिर नया घर कंस्ट्रक्ट करने के लिए, वही स्पेसिफाइड पर्पस के लिए पैसा आप विड्रॉ कर सकते हो। अगर आप समझ लो, आपको टाइम दिया है कि 3 साल के अंदर नया घर बनाना है या तो फिर 2 साल के अंदर नया घर खरीदना है, अगर आपने वो टाइम पीरियड के अंदर वो खाते में पड़ा हुआ पैसा यूज नहीं किया तो क्या होगा? If the amount deposited is not utilized for the specified purpose within the stipulated time period, then the unutilized amount shall be charged as a capital gain in the previous year in which the specified period is expired. Okay, मतलब आपको बोला है कि 3 साल के अंदर कंस्ट्रक्ट करोगे में, और 3 साल के अंदर आपने कंस्ट्रक्ट नया घर नहीं खरीदा और वो खाते में पैसा पूरा का पूरा वैसा पड़ा रहा है, तो તમે શું કરીશું? તો કે मैं कैपिटल गेन पर सपोज समझ लो कि मुझे कैपिटल गेन हुआ था और वो कैपिटल गेन का पैसा पे मुझे टैक्स ना भरना पड़े, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं नया घर खरीद लूंगा और वो पैसे बैंक अकाउंट में डाल दिए। और फिर अपने नया घर खरीदना है तो 2 साल में खरीदना पड़ता है, नया घर कंस्ट्रक्ट करना है तो 3 साल में करना है। तो आपने बैंक को बताया कि भाई नया घर मैं 2 साल में खरीदूंगा और वो पर्पज से पैसे दिए, तो अभी 2 साल के अंदर आपने नया घर खरीदा नहीं, तो जितना भी पैसा वो खाते में पड़ा है ना, 2 साल में ટેક્સેબલ हो जाता है। मतलब આ ઇન્વેસ્ટમેન્ટના બેઝ પર તમે આગળ એક્ઝમ્પશન ક્લેમ કરી દો, હવે આ વર્ષમાં એક્ઝમ્પશન વિથડ્રો થઈ જશે, दैट अमाउंट विल बी टैक्सेबल। ओके, तो 2 साल में अगर आप पूरा पैसा अगर विथड्रॉ मतलब विथड्रॉ जो पैसा पड़ा है उसको अगर आपने यूज नहीं किया तो इट विल गेट टैक्सेबल। ओके, अब ये 54 एफ हमने पढ़ा नहीं है तो वो बाद में हम देखते हैं। ओके, बाकी सभी सेक्शन के लिए सेम है। मतलब इफ इंडिविजुअल डाइज बिफोर द स्टिपुलेटेड पीरियड, सपोज मैंने सोचा कि भाई 3 साल के अंदर मैं नया घर बना लूंगा, तो 3 साल आने से पहले मैं मर गया तो क्या होगा? अनयूटिलाइज्ड अमाउंट इज नॉट टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ लीगल हेड, मतलब मेरे जो लीगल हेड्स है और मेरे जो फैमिली मेंबर है उसके लिए वो टैक्सेबल इनकम नहीं कही जाएगी, एंड दैट exemption will be continued. Okay, legal heads of the deceased, because such unutilized amount is not an income but it is a part of the estate devolving upon them, मतलब એમના પર જે એમને મળતી प्रॉपर्टी છે तो એના पर टैक्स नहीं लेવામાં આવે। ओके, तो अगर आपने अनयूटिलाइज रखा है पैसा और आप मर जाते हो तो वो केस के अंदर आपका अनयूटिलाइज पैसा टैक्सेबल नहीं होता। नाउ लेट अस अगेन गो टू द सेक्शन 54 एक्ट 54। तो व्हाट सेक्शन 54 सेज? ओके, तो यहाँ पे ये सम कर लिया हमने। ओके, अभी ये कुछ नोट्स है वो हम देख लेते हैं। कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन इज इलेवन, तो कमेंसमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन इज इलेवन, मतलब आपको 3 साल के अंदर नया घर बना देना है। कौन सी डेट को आप कंस्ट्रक्शन चालू करते हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जिस दिन घर मैंने बेचा उसके 3 साल के अंदर मुझे नया कंस्ट्रक्शन करना है। ठीक है, तो नया घर बनाने के लिए मैं कौन से डेट को कंस्ट्रक्शन चालू करूंगा दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, लेकिन जिस दिन बेचा उसके 3 साल के अंदर मुझे नया घर कंस्ट्रक्ट कर देना है। तो डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन, completion of construction is relevant, but date of commencement of construction is irrelevant. The construction may be commenced before or after the transfer of the house. देखो, allotment of flat under the self finance scheme is treated as a construction under section 54. Okay, suppose समझ लो कि आपने सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम में फ्लैट खरीदा। सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम क्या होती है कि कोई जगह फ्लैट बनता है तो તમે કીધું કે આ ઘર મારે ખરીદવું છે, તમે એની જો કન્સ્ટ્રક્શન વાળા જોડે એવું કીધું હોય કે ભાઈ જો આટલું કન્સ્ટ્રક્શન થશે એટલે હું તને આટલા પૈસા આપીશ, આટલા લેવલ પર કન્સ્ટ્રક્શન થશે એટલે આટલા પૈસા આપીશ, ને આખું કન્સ્ટ્રક્શન પૂરું થશે એટલે હું તને આટલા આપીશ। અહીંયા તમે ફ્લેટ તમે લો છો પણ એ તમારી રિક્વાયરમેન્ટ મુજબ પ્લાન મુજબ તમારો બિલ્ડર કન્સ્ટ્રક્ટ કરી રહ્યો છે, તો એને કન્સ્ટ્રક્શન કહેવાશે। એટલે ફ્લેટ તમે આ સ્કીમના અંદર ખરીદો કે અંદરથી સેલ્ફ ફાઇનાન્સિંગ સ્કીમ, એટલે તમે પૈસા આપતા જો એમ તમારો બિલ્ડર કન્સ્ટ્રક્શન કરતું જાય। ફ્લેટ બધા માટે બનાવે છે, તમારા ફ્લેટનું અમુક અમુક પર્સન્ટેજ કન્સ્ટ્રક્શન પૂરું થાય એમાં તમે પૈસા આપો, એને કન્સ્ટ્રક્શન કહેવાશે। એટલે એમાં તમને 3 વર્ષનો પીરિયડ મળશે। ઓકે, હોલ્ડિંગ ઓફ લીગલ ટાઇટલ ઇઝ નોટ નેસેસરી if the taxpayer pays the whole consideration and gets the possession of the new house, exemption under section 54 is available। તો સમજી લો કે મને આ વર્ષે કેપિટલ ગેઇન થયો, હવે આ કેપિટલ ગેઇન પર મારે એક્ઝમ્પશન જોઈએ છે તો આઈ હેવ પરચેઝ ધ ન્યૂ હાઉસ, કોઈ એક જણાને પૂરેપૂરા પૈસા આપી દીધા, મને નવા ઘરનું પોઝિશન મળ્યું, હજી ત્યાં દસ્તાવેજ કરવાનું ને બધું બાકી છે। તો કેન યુ પ્રૂવ ધેટ ઇટ ઇઝ અ ટ્રાન્સફર ધ હાઉસ ટુ ન્યુ ઓર વિલ ઇટ ટ્રીટેડ ધેટ પરચેઝ ઓફ ન્યુ હાઉસ? તો યસ,
तो यहाँ एक्चुअल लीगल प्रोसेस नहीं हुआ होगा, लेकिन आप घर का पोजीशन ले लेते हो और फुल कंसिडरेशन दे देते हो, यू कैन क्लेम द एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54। ओके, देखो इन्वेस्टमेंट इंक्लूड्स व्हाट, कॉस्ट ऑफ परचेज ऑफ न्यू हाउस एंड कॉस्ट इनकर्ड टू मेक हैबिटेबल। मतलब इन्वेस्टमेंट के अंदर क्या है कि आप घर परचेस करते हो और हैबिटेबल मतलब રહેવા લાયક બનાવવા માટે તમે થોડું ઘણું ફર્નિચર બનાવ્યું, બીજી બધી વસ્તુઓ ખરીદ, मतलब वो दोनों का मिला के जो कॉस्ट होता है दैट इज द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। ओके, और सपोज समझ लो पर्सन में सेल 2 हाउसेस एंड परचेज 1 हाउस फॉर द पर्पस ऑफ अवेलिंग द एग्जम्पशन पॉसिबल। तो समझ लो कि मैंने 2 घर ये साल में बेचे और दोनों का मिला के कैपिटल गेन हुआ मुझे 25 लाख का, और मैं नया घर 25 लाख का एक ही खरीदता हूँ, तो 2 घर बेचे और उसके सामने एक घर खरीदूंगा, चलेगा? चलेगा। ओके, तो देयर इज नो प्रॉब्लम। देखो एक यहाँ से एक छोटा सा एग्जांपल दिया हुआ है कि मिस्टर सी हैज परचेज द रेसिडेंशियल हाउस इन द ईयर 2019। देखो उसने कब घर खरीदा है? 20 जुलाई 2019। कितने में परचेज किया? 10 लाख। नाउ मेड सम एडिशन टू द हाउस ऑफ रुपीज 2 लाख इन द अगस्त 2019। अगस्त 2019 में मैंने एडिशन किया। Now he sold the property in the year April 2021 for rupees 20 lakh. Now out of the sale proceeds, he spent rupees 5 lakh for purchasing the another property in the year 2021. Find out the amount of capital gain taxable in the hands of Mr. C for the assessment year 2020 to 23. देखो उसने पहला घर कब खरीदा था? उसका जो पहला घर है that he has purchased for rupees 10 lakh on 28 जुलाई 2019। तो ये डेट को उसने एक घर खरीदा, ठीक है, उसने एक घर खरीदा, ये देखो 20 जुलाई 2019। ये उसके अंदर उसने कुछ इम्प्रूवमेंट के लिए 2 लाख के खर्चे किए अगस्त 2019 में, मतलब सेम ईयर में उसने कुछ कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट किया। और उसके बाद वो सेल कर रहा है वो हाउस हमारे प्रीवियस ईयर में, कितने में? 20 लाख में। मतलब 10 लाख में खरीदा, 2 लाख का खर्चा किया, मतलब टोटल 12 लाख में घर उसको पड़ा, और वो घर वो 20 लाख में बेचा। ये आपको बोला है कैपिटल गेन कैलकुलेट करो और वो सब बोला है। तो देखो सबसे पहले मुझे कैपिटल गेन गिनता हूँ तो सबसे पहले मुझे क्या देखना है, वेदर द असेट इज अ शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। तो देखो यहाँ 2019 जुलाई 2019 में खरीद किया, ओके, जुलाई 19 से जुलाई 20 तक 12 महीने हुए, और जुलाई 20 से जुलाई 21 को आपके 24 मंथ्स कंप्लीट हो गए। लेकिन जुलाई 21 से पहले आप अप्रैल में बेच देते हो, मतलब 24 महीना थता पहला बेची दी। असेट के भी चाहिए शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट, पीरियड ऑफ होल्डिंग इज लेस देन 24 मंथ। देखो जुलाई 2019 से लेके अप्रैल 2021 तक का अगर पीरियड आप देखोगे तो इट इज लेस देन 24 मंथ। तो असेट इज अ शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट। तो इस पे जो गेन गिनेंगे वो भी लॉन्ग शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन गिनेंगे, मतलब यहाँ कोई इंडेक्सेशन का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। ओके, तो पहले कैपिटल गेन गिन लेते हैं कि मैंने 2 लाख में एक घर खरीदा, ओके सॉरी ये घर मैंने 20 लाख में बेचा, खरीदा था कितने में? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वाज 10 लाख, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट वाज 2 लाख। इंडेक्सेशन नहीं अप्लाई किया, लॉजिक क्या है? बिकॉज द असेट इज अ शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट। मतलब यहाँ मुझे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ कितना? 20 में से ये 12 लाख चले जाएंगे, मतलब मुझे गेन कितना हुआ? 20 माइनस 12, 8 लाख रुपीज का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अभी यहाँ पे क्या बोला है कि आउट ऑफ दी सेल प्रोसीड्स 5 लाख इज परचेज अनदर, मतलब 8 लाख ना कैपिटल गेन में તમે 5 लाख में नव घर खरीदी। ओके, तो कितना कैपिटल गेन टैक्सेबल होगा? देखो मैंने आपको बताया है कि सेक्शन 54 का बेनिफिट तभी मिलेगा व्हेन योर कैपिटल असेट इज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट। यहाँ पे बोला गया है, देखो असेट क्या होनी चाहिए आपकी? लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट। यहाँ जो असेट आप बेच रहे हो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट है। એનો કેપિટલ ગેઇન બચાવવા નવું ઘર ખરીદશો તો 54 નો બેનિફિટ નહીં મળે। કેવા ઘરની અંદર તમને 54 નો બેનિફિટ મળશે? યુ કેન ક્લેમ ધ બેનિફિટ અંડર સેક્શન 54 ઓનલી ઇફ ધ હાઉસ વિચ ઇઝ સોલ્ડ બાય यू इज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट। सो इसका पीरियड ऑफ होल्डिंग मोर देन 24 होगा तभी। तो यहाँ तो आपने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन किया है, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में से 54 का कोई एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। तो यहाँ नोट भी लिखा है the exemption of capital gain under section 54 is available only in case of long term capital asset. So as the house is a short term capital asset, નો period of holding 24 મહિનાથી ઓછો છે,
So यहाँ asset short term capital asset है, so Mr. C cannot claim the exemption under section 54. So the amount taxable will be 8 लाख. आप ऐसा मत सोचना कि 8 लाख में घर खरीद्યું છે અને એમાંથી સોરી 8 લાખનો કેપિટલ ગેઇન થઈ ગયો છે અને મેં નવું ઘર 5 લાખમાં ખરીદ્યું તો 5 लाख में મને 54 में एग्जम्पशन મળશે. तो ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि असेट शॉर्ट टर्म है तो पूरा 8 लाख आपका क्या हो जाएगा. शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इज ₹8 लाख एंड द होल अमाउंट विल बी टैक्सेबल. समझ में आया पूरा सेक्शन 54? Yes, sir. यस सर. ओके, दिस इज सेक्शन 54. तो 5 मिनट में एक बार वापस मैं इसको रिकैप कर लेता हूँ, देन वी विल मूव टुवर्ड सेक्शन 54B. देखो सेक्शन 54 का एग्जाम्पशन किसको मिलता है? क्योंकि इंडिविजुअल और एक्चुअल, उसमें कौन सी असेट सेल की होगी तो एग्जाम्पशन मिलेगा. तो उसको एग्जाम्पशन तभी मिलेगा जब उसने असेट जो बेची है वो रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है और वो लॉन्ग टर्म हाउस प्रॉपर्टी है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है और उसका इसकी इनकम आपके लिए हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल हो रही है, तभी आपको उसका एग्जाम्पशन मिलेगा. कब मिलेगा? तो कि जितना मैंने कैपिटल गेन किया है उससे मैंने एक नई प्रॉपर्टी बाय की होगी. ओके, अगर देखो कितनी प्रॉपर्टी मुझे बाय करनी, मिनिमम एक. अगर कैपिटल गेन का अमाउंट 2 करोड़ से ज्यादा है मिनिमम में एक बाय कर सकता हूँ. 2 करोड़ से कम है तो मैं मैक्सिमम 2 प्रॉपर्टी बाय करके भी एग्जम्पशन क्लेम कर सकता हूँ. 2 करोड़ से कम है तो 2 प्रॉपर्टी बाय कर सकता हूँ. लेकिन अगर आपने 2 प्रॉपर्टी खरीदने का ऑप्शन आपने ये साल में क्लेम कर लिया, लाइफ में एक ही बार 2 प्रॉपर्टी साथ में खरीद के आप 54 का एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हो. तो अगर आपने ये साल 2 प्रॉपर्टी साथ में कर दी और फ्यूचर में कोई प्रॉपर्टी बेचने के से कैपिटल गेन होता है तो आप नई एक करके एग्जम्पशन ले सकते हो, लेकिन नई 2 परचेस करके एग्जम्पशन क्लेम करना चाहते हो वो एग्जम्पशन आपको फ्री नहीं मिलेगा. फ्यूचर में मतलब लाइफ टाइम में एक ही बार आपको 2 प्रॉपर्टी परचेस करके 54 का एग्जम्पशन मिल सकता है. देखो ठीक है, तो आपको ये नई एसेट कितने पीरियड में बाय करनी है, तो आपने जिस दिन एसेट बेची उसके 1 साल पहले आपने खरीद रखी है आपको एग्जम्पशन मिल जाएगा. लेकिन जब नई एसेट परचेस की तो उसके 2 साल के अंदर, नई आपने पुरानी एसेट सोल्ड की उसके 1 साल के अंदर, सॉरी 2 साल के अंदर या तो आप नई एसेट खरीद लो, नया घर खरीद लो, या तो फिर आपके 3 साल के अंदर नया घर कंस्ट्रक्ट करो. और ये कंस्ट्रक्शन करने के लिए या तो फिर नया घर खरीदने के लिए मैंने आपको क्या बोला, अगर आप अभी नहीं कर रहे हो तो तुरंत आप नहीं कर रहे हो तो आपको कैपिटल गेन अकाउंट्स के में वो पैसा डिपॉजिट कर दो तो आपको वो एग्जम्पशन मिलेगा. ठीक है, और अगर 3 साल के अंदर वो पैसा वहां से अकाउंट में से स्पेंड नहीं किया तो द ईयर इन विच दैट 3 ईयर इज एक्सपायर, in that year that money which is lying in that capital gain account scheme will become taxable. ओके, कितना एग्जम्पशन आपको मिलेगा, तो फिर नए घर में जो इन्वेस्ट किया है वो और कैपिटल गेन विच एवर इज लोअर विल बी एग्जम्प्ट, उतना आपको एग्जम्पशन मिलेगा. अगर और नया घर जो आपने खरीदा है उसको आपको मिनिमम 3 साल तक आपके पास रखना पड़ेगा. 3 साल से पहले आप उसको बेच देते हो तो क्या होगा, जो भी कैपिटल गेन आपको हुआ का आपने एग्जम्पशन क्लेम किया है, the year in which you sell the new house, that capital gain will get reverse, it is taxable. तो उसका कैपिटल गेन कितने टाइम पे आपको ये ट्रीटमेंट देनी हमने सम किया. ठीक है, और ये आपको लॉन्ग टर्म में ही बेनिफिट मिलता है, दैट वी हैव डिस्कस. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, देखो घर के बदले में घर, सेक्शन 54. अभी ये दूसरा पॉइंट है कि अगर आपने कोई एग्रीकल्चर लैंड बेची, देखो एग्रीकल्चर लैंड के बारे में आप बहुत क्लियर हो, एग्रीकल्चर लैंड पे कैपिटल गेन कब होगा. देखो एग्रीकल्चर लैंड इज अ रूरल एग्रीकल्चर लैंड, नो कैपिटल गेन बिकॉज इट इज नॉट अ कैपिटल. लेकिन एग्रीकल्चर लैंड आपकी कैसी है, अर्बन है. एग्रीकल्चर लैंड कैसी है, अर्बन है. और अर्बन एग्रीकल्चर लैंड को बेचोगे तो आपको कैपिटल गेन होगा, तो कैपिटल गेन टैक्सेबल होगा. तो बड़ौदा सिटी के अंदर या बड़ौदा सिटी के 8 किलोमीटर की रेंज के अंदर मेरे पास कोई लैंड है तो इट इज ट्रीटेड एज अर्बन लैंड. तो ये अर्बन लैंड है और उसको मैं बेचता हूँ तो उससे मुझे कैपिटल गेन होगा तो वो टैक्सेबल होगा. अभी इसका कैपिटल गेन मुझे नहीं पे करना, उस पर मुझे एग्जम्पशन क्लेम करना है. तो अगर अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है उसको बेचा है और जो मुझे कैपिटल गेन हुआ है और वो कैपिटल गेन पे टैक्स नहीं पे करना है, मुझे क्या करना पड़ेगा, दूसरा घर खरीद, दूसरा लैंड बाय करना पड़ेगा. तो लैंड के बदले में लैंड. देखो तो ये बहुत छोटा सा सेक्शन है, लेट अस डिस्कस. Who is eligible assess, इसको एग्जम्पशन 54 में मिलेगा. 54 बोर्ड बी इज द लैंड के बदले में लैंड, 54 घर के बदले में लैंड. ओके, तो देखो वो इज
एलिजिबल असेट है। तो 54B का एग्जम्पशन भी इंडिविजुअल और एचटीएफ को ही मिलता है। आपने कौन सी असेट सेल की है, की होनी चाहिए, विच असेट इज ट्रांसफर। तो आपने अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, देखो हाउस के केस में मैंने क्या बोला था, वो लॉन्ग टर्म ही होना चाहिए। 54B के लिए क्या बोला है, अगर लॉन्ग टर्म लैंड बेची है या तो फिर शॉर्ट टर्म लैंड बेची है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको 54B का एग्जम्पशन मिलेगा। बस सी यहाँ पे आपको पता है कि भाई एग्री लैंड को एग्रीकल्चर लैंड कब कहते हैं, दैट मस्ट बी यूज at least for 2 years from before the date of transfer for agriculture purpose। इसको ये हम अर्बन एग्रीकल्चर लैंड बोलेंगे, अर्बन एरिया में है और एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज हो रही है, देन वी कैन कॉल दैट लैंड एज ए अर्बन एग्रीकल्चर लैंड। तो अर्बन एग्रीकल्चर लैंड आपने सोल्ड की, ओके, वो शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है, डजंट मेक एनी डिफरेंस। आप कौन से असेसी हो, तो क्या आप इंडिविजुअल या एचयूएफ हो, और आपको कैपिटल गेन हुआ, तो अगर आपको ये कैपिटल गेन पे टैक्स बचाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू आर सपोज टू एक्वायर्ड अ न्यू असेट। विच असेट इज रिक्वायर्ड टू बी एक्वायर्ड, कौन सी नई असेट आपको खरीदनी पड़ेगी, आपको एग्रीकल्चर लैंड के बदले में नई एग्रीकल्चर लैंड बना खरीदनी पड़ेगी। वो नई खरीदते हो, रूरल हो या अर्बन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, नई लैंड। અમુક લોકો એવું કરે કે સિટીમાં પોતાની જમીન હોય એ વેચી દે, એના પર કેપિટલ ગેઇન કમાય, હવે એના પર કેપિટલ ગેઇન પર ટેક્સ બચાવો હોય તો નવી લેન્ડ રૂરલ એરિયામાં પરચેસ કરશે, कैन ही गेट द बेनिफिट ऑफ 54B? आंसर इज यस। तो नई लैंड आप बाय करते हो वो एग्रीकल्चर होनी चाहिए, लेकिन वो रूरल या हो अर्बन हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बेचने वाली लैंड हमेशा अर्बन होनी चाहिए तो 54B का बेनिफिट मिलेगा। लेकिन खरीदने वाली लैंड, आप नई लैंड जो खरीदती हो, रूरल भी खरीद सकते हो, अर्बन भी खरीद सकते हो। देखो कितने ईयर में आपको खरीदनी पड़ेगी, तो आपको नई जो लैंड है उसको विद इन 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर, मतलब आपने जब नई पुरानी लैंड बेची उस पर कैपिटल गेन हुआ, वो कैपिटल गेन आपको हो गया, अभी कैपिटल गेन का टैक्स बचाना है, तो आपको नई लैंड आपको कितने पीरियड में बाय करनी है, विद इन 2 years। अगर 2 साल में, मतलब दो तुरंत खरीदे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन तुरंत नहीं खरीदते हो तो पैसा कहाँ डिपॉजिट करना पड़ेगा। देखो ये सेक्शन 54B के लिए भी वो कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम एप्लीकेबल है। If you see the capital gain account scheme, it is for 54B, so I am still not going to read again and again। It is the same provision कि आपको वो अकाउंट में पैसे रख देने हैं, 2 साल के अंदर नई लैंड परचेज करनी पड़ेगी, नहीं परचेज करोगे तो जो अकाउंट में पैसा पड़ा है आपका वो 2 साल का पीरियड जैसे ही एक्सपायर हो जाएगा, दैट इनकम विल बी टैक्सेबल इन योर हैंड, 2 साल में वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो 54 में आपको अर्बन लैंड बेचनी है, उसके सामने नई लैंड बाय करनी है, वो रूरल भी हो सकती है, अर्बन भी हो सकती है, कितने पीरियड में बाय करनी है, विद इन 2 years, ओके। और देखो ये जो नई लैंड आपने बाय की है उसको मिनिमम कितने साल तक आपको रखना पड़ेगा, आपके पास 3 साल के लिए। 54 जैसा ही है कि यू आर सपोज टू कॉन्सिक्वेंस ऑफ ट्रांसफर विद इन 3 years। तो नया घर है वो, आप नया जो लैंड है उसको 3 साल के अंदर ट्रांसफर करोगे तो क्या होगा, सो सी, ओके, इट इज सेम एज सेक्शन 54, ओके। 54 जैसा ही होगा कि भाई नई गेन, नई असेट जो हुई वो आपको 3 साल तक आपको आपके पास रखनी है और उसको बेचोगे 3 साल से पहले, तो उसके कैपिटल गेन को गिनते टाइम पे आपको क्या करना है, जो आगे क्लेम किया हुआ कैपिटल गेन होगा उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से लेस हो जाएगा। जैसे मैंने ये 12 लाख में से 9 लाख में से 7 लाख लेस कर दिया था, ऐसा होगा। लेकिन यहाँ पे बेनिफिट क्या हो सकता है कि अगर नई लैंड आपने जो बाय की है वो कहाँ बाय की, कोई रूरल एरिया, पुरानी लैंड कौन सी थी, अर्बन एरिया, अर्बन एरिया में नई लैंड, पुरानी लैंड बेची सपोज, और उस पर आपको 25 लाख का कैपिटल गेन हो गया, ठीक है। तो वही 25 लाख से आपने नई लैंड रूरल एरिया में परचेस की। ये आपके लिए रिक्वायरमेंट क्या है कि 3 साल तक आपको इसको होल्ड करना पड़ेगा। 3 साल तक होल्ड नहीं किया तो क्या होगा, इस पे जो कैपिटल गेन जब गिनते हो तो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से ये पुराना वाला जो अपना आपका एग्जम्पशन है वो लेस करना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से। तो लेकिन नई लैंड कौन सी है आपकी, नई लैंड रूरल है और रूरल लैंड इज नॉट अ कैपिटल असेट, तो उसको बेचोगे तो कैपिटल गेन ही नहीं होने वाला है। तो मतलब क्या हुआ, रूरल लैंड आप कभी भी बेचोगे आपका एग्जम्पशन रिवर्स नहीं होगा, क्योंकि रूरल लैंड पे तो कैपिटल गेन लगने वाला ही नहीं है। तो यहाँ पे वही बोला, हाउ द न्यू एग्रीकल्चर लैंड इज द रूरल एग्रीकल्चर लैंड, देयर वुड बी नो कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ सच कैपिटल लैंड, ठीक है। मतलब अगर अर्बन के बदले में अर्बन आपने बाय की तो 3 साल होल्ड करना पड़ेगा, अर्बन के सामने रूरल बाय किया, आप कभी भी बेच दो, आपका कैपिटल गेन का जो एग्जम्पशन आपने क्लेम किया वो रिवर्स नहीं होगा, ओके। सो दिस इज द पॉइंट। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज सेक्शन 54B। इंडिविजुअल और एचयूएफ को मिलता है
अर्बन लैंड को बेचने पे मिलता है। अर्बन लैंड लॉन्ग टर्म भी हो सकती है, शॉर्ट टर्म भी हो सकती है, लेकिन जो अभी अर्बन लैंड है उसको एग्रीकल्चर पर्पस के लिए जिस दिन आप बेचते हो उसके 2 साल के अंदर कभी भी यूज़ किया होना चाहिए एग्रीकल्चर लैंड के लिए पर्पस के लिए, तभी हम उसको एग्रीकल्चर लैंड बोलोगे। और उसको अपने बीची पुरानी लैंड वो कौन सी होनी चाहिए, अर्बन होनी चाहिए। और उसके सामने अगर आपको कैपिटल गेन का टैक्स बचाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, लैंड के सामने लैंड बाय करनी पड़ेगी, वो रूरल भी होगी अर्बन भी होगी, लेकिन एग्रीकल्चर होनी जरूरी है। और आपको कितने पीरियड में बाय करनी है, तो विद इन 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। कितना एग्जम्पशन मिलेगा, सेम एज सेक्शन 54 भी, मतलब अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट for amount of capital gain whichever is lower that much exemption is available। और अगर आप जो नई लैंड बाय की है उसको आप 3 साल से पहले बेचते हो, नई लैंड अर्बन है और उसको 3 साल से पहले बेचते हो, तो इसके जैसा ट्रीटमेंट आएगा। अगर नई लैंड रूरल है और उसको 3 साल से पहले बेचते तो कोई आपका एग्जेम्पशन रिवर्स नहीं है। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू सेक्शन 54B? Yes, यस sir. सर। Yes, sir. नाउ द नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन 54D। तो 54D का एग्जम्पशन किसको मिलता है? Exemption under section 54D is available to all kind of assets। 54 और 54B सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ को मिलते हैं, लेकिन 54D जो है, ओके, इसका एग्जम्पशन सभी एसएससी को मिलता है। ओके, तो एनी एसएससी को एग्जम्पशन मिलता है। कौन सी एसेट को बेचने पे कैपिटल गेन हुआ होना चाहिए, तो 54D का आप एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हैं। जो आप एसेट बेच रहे हो वो इंडस्ट्रियल लैंड या इंडस्ट्रियल बिल्डिंग होनी चाहिए, whether it is short term or long term doesn't make any difference। So the asset which you are selling must be a industrial land or industrial building। okay, तो इंडस्ट्रियल लैंड और बिल्डिंग आप बेच रहे हो और उस पर कैपिटल गेन हुआ है। ओके, और इसको इंडस्ट्रियल आप कब कहोगे? Such land or building should be used by the assessee for industrial for industrial undertaking at least for 2 years immediately preceding the date of transfer। मतलब जिस दिन ट्रांसफर करते हैं उसके 2 साल के अंदर वो असेट का यूज इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज हुआ है, लैंड और बिल्डिंग दोनों का, तो आप उसको इंडस्ट्रियल लैंड और बिल्डिंग कह सकते हैं। और इंडस्ट्रियल लैंड और बिल्डिंग आपने बेचा, इंडस्ट्रियल लैंड और बिल्डिंग आपने बेचा, तो आपको क्या करना पड़ेगा? अगर कैपिटल गेन का टैक्स बचाना है तो यू हैव टू बाय दी अनदर लैंड और बिल्डिंग फॉर इंडस्ट्रियल पर्पज। मतलब एक लैंड और बिल्डिंग आपने बेचा तो आपको नया लैंड और बिल्डिंग आपको बाय करना पड़ेगा। कितने टाइम में आपको बाय करना पड़ेगा? आपको विद इन 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ कॉम्पेंसेशन। मतलब आपने पुरानी लैंड जो बेची, पुरानी बिल्डिंग जो बेची, उसका जो पैसा मिला है, देखो ऊपर के दोनों पॉइंट में विद इन 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर था, यहाँ पे भी विद इन 2 years 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर था, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है? विद इन 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ कॉम्पेंसेशन। मतलब आपको अपने लैंड और बिल्डिंग बेची, उसका जो पैसा मिला है उसके 3 साल के अंदर आपको नई लैंड और बिल्डिंग इंडस्ट्रियल पर्पज वाली बाय कर लेनी है। पीरियड इज 3 years। अगर 3 साल के अंदर मतलब वो पैसा क्या करोगे आप? 3 साल तक नहीं बाय करते हो तो यू आर सपोज टू डिपोजिट इन दी कैपिटल गेन अकाउंट्स की, और उसमें से आप 3 साल के अंदर कभी भी नई लैंड एंड बिल्डिंग जो इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए यूज हो सके ऐसी आपको बाय करनी है। कितना एग्जम्पशन मिलेगा? सेम एज सेक्शन 54। मतलब क्या है कि आपको कैपिटल गेन का अमाउंट और इन्वेस्टमेंट इन द न्यू प्लांट एंड न्यू बिल्डिंग is allowed as a exemption, whichever is lower is allowed as a exemption। Consequences of transfer within 3 years। अगर 3 साल से पहले इसको बेच देते हो तो क्या होगा? सेम है सेक्शन 54। सेक्शन 54 में मैंने क्या बोला कि जितना एग्जम्पशन आपने क्लेम किया है वो रिवर्स हो जाएगा। कैसे रिवर्स होगा? तो कि नई लैंड को बेचने पे, नई बिल्डिंग को बेचने पे जो गेन होता है वो गेन गिनते टाइम पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है उसमें से अपना एक्चुअल जो आपने एग्जम्पशन क्लेम किया उसको लेस कर दो, जैसे ये सब में मैंने किया था। ओके, ऐसे तो ऐसे करके एग्जम्पशन आपका रिवर्स हो जाएगा 54D के केस में। तो 54D इज व्हाट? इंडस्ट्रियल लैंड और बिल्डिंग आपने बेचा है, सामने आपको नया इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग 3 साल के अंदर बाय कर लेना है, तो एग्जम्पशन आपको जो भी गेन हुआ है उसका मिलेगा। ओके, और तो लैंड और बिल्डिंग के बदले में लैंड एंड बिल्डिंग। लेकिन ये पॉइंट का सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि एग्जम्पशन सभी एसएससी को मिलता है, सिर्फ इंडिविजुअल एचयूएफ को नहीं मिलते। ऊपर के दोनों एग्जम्पशन इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए और ये एग्जम्पशन सभी के लिए। ये पॉइंट हुआ हमारा सेक्शन 54D
सेम एज 54। मैंने आपको 54 में ज़्यादा टाइम दिया, लेकिन ये फटाफट आप समझ सकते होंगे, क्योंकि I hope that you have understood what is section 54D. Now see, the next point is the 54EC. लास्ट इज सेक्शन 54F. ये दोनों हम आज ही डिस्कस करेंगे. ओके, तो व्हाट इज सेक्शन 54EC? बहुत बढ़िया सेक्शन है ये, ठीक है. देखो, कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ एनी कैपिटल असेट. देखो कैपिटल कैसी असेट्स कैसी होनी चाहिए? लॉन्ग टर्म. आपने कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट और उस पर आपको गेन हुआ है. ओके, तो यहाँ पे सेक्शन 54EC क्या कहता है? कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन सर्टेन बॉन्ड. मतलब आप कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट खरीदते हो, whether it is a land, building, house property, gold, ज्वेलरी, शेयर्स, कोई भी कैपिटल असेट, लेकिन वो क्या होनी चाहिए? लॉन्ग टर्म होनी चाहिए. और उसको बेच के आपको कैपिटल गेन हुआ, और वो कैपिटल गेन पे आपको टैक्स नहीं भरना है, आपको एक्सम्पशन चाहिए. तो क्या कर सकते हैं? तो यहाँ लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट है, तो आपको सेक्शन 54 का एक्सम्पशन मिलता है कि वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का जो भी पैसा आया, उससे आप कुछ स्पेसिफाइड बॉन्ड बाय कर, पैसे से आप बॉन्ड बाय कर लो, और बॉन्ड बाय कर दोगे तो जितना इन्वेस्टमेंट आपने बॉन्ड में किया उतना आपका कैपिटल गेन में से एग्जम्पशन मिल जाएगा. और ये अच्छा एग्जम्पशन है कि आपको लैंड के बदले में सिर्फ लैंड, या घर के बदले में घर, या तो फिर लैंड और बिल्डिंग के बदले में लैंड और बिल्डिंग नहीं बाय करनी, और आपसे आपका कैपिटल गेन कैसा है? लॉन्ग टर्म है, तो आप उससे बॉन्ड बाय कर लो और कैपिटल गेन का आपको एग्जम्पशन मिलेगा. देखो ये एग्जम्पशन किसको मिलता है? दिस एग्जम्पशन इज अवेलेबल टू एनी एसएससी. तो एनी एसएससी कैन क्लेम द एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54EC. नाउ व्हिच एसेट इज ट्रांसफर्ड? आपने कौन सी एसेट ट्रांसफर की होनी चाहिए? तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बीइंग अ लैंड और बिल्डिंग और बोथ, even depreciable asset held for 36 months. It's a long term capital asset even if there is it is regarded as short term. तो देखो यहाँ पे 2 मिनट देना मुझे. यहाँ पे ऊपर लिखा है एनी और यहाँ पे नीचे लिखा है लैंड और बिल्डिंग. तो 54EC के लिए एलिजिबल असेट क्या है? 2 मिनट मुझे दीजिए, लेट मी क्लैरिफाई के लिए जस्ट मिनट. तो 54EC में ओके, यहाँ एनी लिखा है लेकिन एनी नहीं होगा. यहाँ पे क्या लिखा है? एनी है, लेकिन यहाँ एनी असेट नहीं है. आपकी जो लॉन्ग टर्म असेट है वो शेयर्स बेस नहीं चलेगा. लॉन्ग टर्म असेट जो आप बेच रहे हो वो क्या होनी चाहिए? या तो लैंड या तो फिर बिल्डिंग. और वो लैंड और बिल्डिंग अगर आप बिजनेस में भी यूज करते हो और उसको 36 मंथ होल्ड किया है, तो पता है बिजनेस में यूज करते हैं तो हम डेप्रिसिएशन क्लेम करते हैं, और डेप्रिसिएशन क्लेम करते हैं तो उसमें होने वाला कैपिटल गेन हमें हमेशा शॉर्ट टर्म होता है. लेकिन यहाँ पे ये सेक्शन के लिए बोला है कि अगर बिजनेस में यूज होने वाली असेट इस पे अपने डेप्रिसिएशन क्लेम करते हो और उसको उस पे भी आपको एग्जम्पशन अगर चाहिए और वो असेट आपने 36 मंथ होल्ड की है, तो उसको भी हम लॉन्ग टर्म गिनेंगे. अदरवाइज क्या होता है कि डेप्रिसिएबल असेट पे होने वाला कैपिटल गेन हमेशा शॉर्ट टर्म होता है. तो यहाँ पे आपको वो असेट को लॉन्ग टर्म ही गिनोगे. ओके, सपोज कोई लैंड या बिल्डिंग, सपोज बिल्डिंग इज देयर व्हिच आई एम यूजिंग फॉर माय बिजनेस एंड ऑन व्हिच आई एम क्लेमिंग द डेप्रिसिएशन ऑल्सो. तो डेप्रिसिएशन भी मैं क्लेम करता हूँ. तो आप बोलोगे सर ये तो लॉन्ग टर्म नहीं हुई, शॉर्ट टर्म ही होगी. लेकिन अगर वो बिल्डिंग मैंने 36 मंथ से ज्यादा होल्ड किया है और इफ आई वांट टू क्लेम द एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54EC, so even though that building is used for my business and on that I am claiming the short term capital depreciation on that, तो वो असेट को कैपिटल गेन गिनने के लिए शॉर्ट टर्म लिखेंगे, लेकिन 54EC का एग्जम्पशन मिलेगा. ओके, लेकिन असेट कौन सी होनी चाहिए? देखो एनी असेट भले यहाँ पे लिखा है, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली बोल दिया गया कि बिल्डिंग और लैंड या तो फिर दोनों वो असेट आप बेच रहे हैं. ओके, कोई भी बिल्डिंग होगी, इंडस्ट्रियल, नॉन इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर लैंड, नॉन एग्रीकल्चर लैंड. ओके, एग्रीकल्चर लैंड पे तो अगर रूरल है तो आपको गेन टैक्सेबल ही नहीं होता है, कि वो कैपिटल असेट नहीं है. लेकिन कोई भी लैंड और बिल्डिंग बेचते हो, कैपिटल गेन हो रहा है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है और वो कैपिटल गेन पे आपको टैक्स बचाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? जो भी कैपिटल गेन का अमाउंट है
उसमें से आपको बॉन्ड बाय करना है। देखो आपको कौन कौन से बॉन्ड बाय करने पे आपको एग्जम्पशन मिलेगा। तो ये कैपिटल गेन आपको ये असेट को बेचने पे हुआ और आपको टैक्स भरने का आया, तो टैक्स नहीं भरना है। वो कैपिटल गेन का जो भी अमाउंट है उसमें से आप बॉन्ड बाय कर लो। आपको उतना कैपिटल गेन जितना आपने, सपोज मैंने कोई असेट बेची, लैंड और बिल्डिंग, ओके, सपोज समझ लो कि मैंने एक बिल्डिंग बेची और वो बिल्डिंग को बेचने से मुझे, और वो लॉन्ग टर्म बिल्डिंग है और मैंने उसके लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन गिना, एंड माई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इज से ₹10 लाख। ओके, ये 10 लाख पे मुझे टैक्स नहीं पे करना है, तो मैं 10 लाख के या तो फिर 10 लाख में से 8 लाख के मैं क्या कर देता हूँ, बॉन्ड्स बाय कर देता हूँ। जितना बॉन्ड्स बाय किया उतना मुझे एग्जम्पशन मिल जाएगा। तो आई हैव टू पे द टैक्स ऑन द रिमेनिंग 2 लाख ओनली, एंड दिस 8 लाख विल बी एग्जाम बिकॉज कैपिटल गेन का जो अमाउंट था उसमें से 8 लाख मैंने बॉन्ड में इन्वेस्ट कर दिया। तो पूरा 10 इन्वेस्ट कर दिया है तो पूरा एग्जम्पशन मिल जाएगा। तो आपको बॉन्ड्स नए बाय करने हैं। ओके, तो नए बॉन्ड्स आपको बाय करने, तो कौन से बॉन्ड्स बाय करने पड़ेंगे? तो सी बॉन्ड्स ऑन दी बॉन्ड्स ऑफ द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मतलब जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वो जो बॉन्ड इश्यू करती है वो बॉन्ड, या तो फिर बॉन्ड्स ऑफ द रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन, ओके, रिडीमेबल आफ्टर 5 years। ओके, तो ये दो टाइप के बॉन्ड अगर आप बाय करते हो कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बॉन्ड या तो फिर रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने इश्यू किए जो 5 साल में रिडीम होते हैं, ऐसे बॉन्ड अगर आप बाय करते हो तो। और देखो ये बॉन्ड्स इश्यूड बाय दी पावर, ये 5 है कि बॉन्ड इश्यूड बाय दी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ऑन और आफ्टर 15 जून 2017, मतलब इससे पहले के जो बॉन्ड है वो परचेज करोगे एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के भी बॉन्ड बाय कर सकते हो, लेकिन कौन सी डेट के बाद इश्यू किए होने चाहिए उसने, 15/6/2017। या तो फिर बॉन्ड्स इश्यूड बाय द इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑन और आफ्टर 8/8/2017, ओके, और रिडीमेबल आफ्टर 3 years। मतलब ये 4 अथॉरिटी के आप बॉन्ड बाय करते हो। देखो हमारा करंट ईयर तो यही है 2021-22, तो यहाँ ये डेट का कोई मतलब नहीं रहता है, क्योंकि आप असेट बेचोगे और उसके बाद खरीदोगे तो ये डेट के बाद का ही है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि आपके ये बॉन्ड 4 कंपनी के बॉन्ड दिए गए, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बॉन्ड, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन के बॉन्ड जो 5 साल के बाद रिन्यू होते हैं, या तो फिर पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के बॉन्ड, या तो फिर रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन के बॉन्ड जो 3 साल में रिडीम होते हैं। ऐसे 4 में से कोई भी बॉन्ड आप बाय करते हो तो आपको जो लॉन्ग टर्म लैंड और बिल्डिंग को बेचने से आपको जो भी गेन हुआ है वो गेन एग्जाम हो सकता है जितना आपने इन्वेस्टमेंट किया है उतना। ठीक है, आपको ये नए बॉन्ड कितने पीरियड में बाय करने हैं, तो विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। तो जिस दिन आपने बेचा उसके 6 महीने के अंदर, देखो आगे 3 साल 2 साल 1 साल ऐसा पीरियड था, यहाँ पे सिर्फ 6 महीने का टाइम दिया गया कि विद इन 6 months, क्योंकि बॉन्ड परचेज करना, घर और बिल्डिंग परचेज करना में बहुत डिफरेंट है, इसलिए वहाँ पे लंबा टाइम दिया है कि बॉन्ड यू कैन इजीली बाय। सो विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर यू आर सपोज टू बाय द न्यू बॉन्ड। नाउ हाउ मच एग्जम्पशन यू कैन क्लेम? तो कैपिटल गेन का अमाउंट और अमाउंट इन्वेस्टेड इन बॉन्ड विच एवर इज लोअर। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिमिट दी गई है, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट दैट कैन बी मेड इन दी बॉन्ड्स ऑफ नेशनल हाईवे ऑन एंड RECL, मतलब रूरल इलेक्ट्रिसिटी जो है ना, ये रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन के जो बॉन्ड हैं, ओके, the maximum investment that can be made in the bond in the National Highway Authority and RECL from the capital arising from the transfer of one or more long-term capital gain during the previous year of transfer and in the subsequent year cannot exceed 50 lakh। मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि आपको कैपिटल गेन का अमाउंट जितना है उतना, और अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट विच एवर इज लोअर दैट इज अलाउड एज ए एग्जम्पशन। लेकिन ये दो बॉन्ड में लाइफ टाइम में आप मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कितना कर सकते हो, यू कैन मेक ओनली अप टू ₹50 लाख। 50 लाख से ज्यादा इन्वेस्टमेंट आपने किया है ये दो बॉन्ड में। हाँ, दूसरे दो बॉन्ड में आप जितना करना चाहते हो कर सकते हो। ऊपर के जो दो बॉन्ड है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन की जो 5 year रिडीमेबल बॉन्ड है, उसमें अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो लाइफ टाइम आपका इन्वेस्टमेंट 50 लाख ही कर सकते हो, और 50 लाख से ज़्यादा किया तो आपको एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। Let's see, let me give you the example so you will get the clarity. Like suppose आपने ऑलरेडी ये रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन RECL जो है उसमें आपका ऑलरेडी 20 लाख का अपने पास्ट में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, और इसका आपने आगे एग्जम्पशन भी इसके बेस पे ले लिया।
और अपने ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के में भी 10 लाख का भूतकाल में अपने इन्वेस्टमेंट करके इसका एग्जाम्पशन ले लिया है। मतलब आपने ऑलरेडी 30 लाख का तो एग्जाम्पशन आपने पास्ट में ले लिया। अभी करंट ईयर में क्या होता है, अगर आप एक बिल्डिंग बेचते हो और वो बिल्डिंग पे आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है 60 लाख रुपीज, तो आपने सोचा कि 60 लाख का कैपिटल गेन पे मुझे टैक्स बचाना है, तो लेट मी बाय द बॉन्ड्स ऑफ रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन बोर्ड और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बॉन्ड। तो मैं आप क्या करते हो, 60 लाख के नए बॉन्ड बाय कर लेते हो। कैन यू क्लेम द एग्जाम्पशन ऑफ 60 लाख? नो, क्योंकि लाइफ टाइम में आप ये दोनों में एग्जाम्पशन के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो मैक्सिमम कितना कर सकते हो, 50 लाख। आपने ऑलरेडी 30 लाख का इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो भले आप 60 लाख के नए बॉन्ड बाय करोगे लेकिन आपको एग्जाम्पशन कितना मिलेगा, ओनली 30 लाख, क्योंकि मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट दैट यू कैन मेड टू क्लेम द एग्जाम्पशन इज हाउ मच, 50 लाख। तो आपको 30 लाख का ही डिडक्शन मिलेगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी 30 लाख का डिडक्शन क्लेम कर लिया। तो आपको दूसरा कितना कर सकते हो, तो आप दूसरा 20 लाख का ही कर सकते हो। अगर आपने 60 लाख इन्वेस्ट कर दिया तो भी एग्जाम्पशन आपको कितने का मिलेगा, 20 लाख का, क्योंकि आपने ऑलरेडी 30 लाख का तो इन्वेस्टमेंट कर रखा है। ओके, यहाँ कहने का मतलब क्या है कि ये दो बॉन्ड, तो आप क्या करो, देखो आपको पूरा 60 लाख का एग्जाम्पशन चाहिए, तो आप क्या करो, ये 20 लाख के दोनों में से किसी के बॉन्ड बाय कर दो, या फिर रेलवे अथॉरिटी के, या तो फिर वो दूसरी जो एसोसिएशन है, दूसरा जो कंपनी है, दूसरा कंपनी कौन सा है, रेलवे और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, उसमें कोई लिमिट नहीं है। फिर लिमिट कहाँ पे है, दोनों में ही लिमिट है कि लाइफ टाइम में, मतलब करंट ईयर में और सब्सिक्वेंट प्रीवियस ईयर में, मतलब पास्ट में इन्वेस्ट किया वो भी आपने कर दिया पास्ट में, तो ये साल आपके लिए क्या हो जाएगा, सब्सिक्वेंट। इसीलिए यहाँ पे मैं लाइफ टाइम बोल रहा हूँ। लाइफ टाइम ये दोनों के अंदर आपका इन्वेस्टमेंट 50 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और बाकी के दो जो है उसमें आप कर सकते हो, तो एग्जाम्पशन इज अवेलेबल। ओके, देखो यहाँ लॉक इन पीरियड, आपने जो नए बॉन्ड, बाकी सब में क्या था, नई एसेट आपने बाय की उसको 3 साल तक आपको रखनी पड़ती है अपने पास, लेकिन ये सेक्शन 54 इसी में क्या बोला है कि जो नई एसेट है उसको आपको मिनिमम 5 साल, मतलब ये बॉन्ड है उसको लॉक इन पीरियड में रखना पड़ेगा, मतलब 5 साल से पहले आप बेच नहीं सकते इसको। The bond should not be transferred for the period of 5 years. An assessee should not transfer or convert or avail loan. અમુક લોકો લોન આપણી પાસે બોન્ડ પડ્યા હોય તો બોન્ડને ગીરવે મૂકીને એના પર લોન લઈ લે, તો તમે એના પર લોન પણ ના લઈ શકો અને એને 5 સાલ સુધી વેચી પણ ના શકો, તો જ આ તમારું એક્ઝમ્પશન કન્ટિન્યુ રહેશે. ઓકે, so from the date of acquisition you cannot either sell or you cannot take a loan. अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज एग्जाम्पशन ग्रांटेड अर्लियर विल बी टेकन बैक, मतलब जो कोई वर्ष में बॉन्ड વેચી દીધા તો જેટલા બી તમે એક્ઝમ્પશન અર્લિયર યરમાં ક્લેમ કર્યું છે that much will become your income in this year. ओके, देखो यहाँ पे एक पॉइंट है कि रिसिप्ट ऑफ लिक्विडेशन, रिसिप्ट ऑफ मनी ऑन लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर. Okay, under section 46 of section 2, in such case there is no transfer of capital asset, thus the exemption under 54 EC is not available. Okay, हाँ, तो यहाँ पे क्या होता है, receipt of money on liquidation of company is taxable in the hands of shareholder. Okay, so in case there is no transfer, so in such case there is no transfer of capital asset, thus exemption under section 54 EC is not available. ठीक है, देखो ये क्या बोलना चाहता है, पॉइंट इतना हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर अपने सपोज समझ लो कोई कंपनी के 50% शेयर्स आपके पास है और वो कंपनी में लैंड है, बिल्डिंग है और दूसरी सब असेट, ठीक है, और आपके पास 50% उसका हिस्सा है, मतलब आपका 10 लाख का इन्वेस्टमेंट। अभी कंपनी ने सोचा कि हम लिक्विडेट कर देते, कंपनी को बंद कर देते, तो कंपनी ने क्या किया, उसकी असेट बेच दी। असेट बेचने के बाद आपने कंपनी में 10 लाख इन्वेस्ट किया था, आपको मिला 12 लाख 15 लाख रुपया मिला। ओके, तो यहाँ आपने क्या किया, देखो यहाँ पे आपने आपकी लैंड और बिल्डिंग नहीं बेची, लैंड और बिल्डिंग किसकी बिकी है, कंपनी की, और आपने जो कंपनी में इन्वेस्ट किया था वो पैसा आपको वापस मिलेगा, तो इसको कैपिटल गेन के चैप्टर में इसको ट्रांसफर नहीं गिनते। अगर ऐसे केस में आपको कंपनी के लिक्विडेशन के टाइम पे सपोज तुमने 10 लाख इन्वेस्ट करा था, तुमने 25 लाख पाछा મળ્યા, તમે કહેશો 12,50,000 कैपिटल गेन કેવા, आंसर इज नो, दिस इज नॉट ट्रीटेड एज ट्रांसफर, इट इज नॉट कैपिटल गेन.
तो फिर भी आप क्या करते हो, पैसा मिला उसमें से बॉन्ड बाय कर देते हो और बोलते हो मैं 54 इसी में एक्सटेंशन क्लेम करूंगा, मिलेगा? आंसर इज नो, बिकॉज इफ यू रिसीव द मनी ऑन लिक्विडेशन फ्रॉम द कंपनी, ओके, दैट इज नॉट ट्रीटेड एज ए ट्रांसफर। उसको ट्रांसफर की डेफिनेशन से एग्जाम रखा गया है, उसको ट्रांसफर नहीं गिनते। ओके, वो हमने लिया नहीं कि व्हाट इज नॉट ट्रीटेड एज ट्रांसफर, उसको पूरा डिटेल में हमने नहीं लिखा है। तो बट यू मस्ट नो कि लिक्विडेशन के टाइम पे कुछ पैसा आपको वापस मिलता है तो उसको ट्रांसफर नहीं कहते, तो आपको 54 ईसी का बेनिफिट वहाँ नहीं मिलेगा, ये पॉइंट कहना चाहते हैं। ठीक है, तो कोई एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है, लेटेस्ट डिस्कस फॉर 54 ईसी का एक एग्जाम्पल दिया है कि आपको कैपिटल गेन हुआ है 75 लाख का ऑन ट्रांसफर ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट ऑन 15 February 2019. It will be exempt from tax if the capital gain is invested in the bonds redeemable after 5 years issued by the National Highway Authority. Okay. Comment whether it is true or false. देखो आपने क्या किया है, आपने 75 लाख के का कैपिटल गेन हुआ है, कौन से ईयर में हुआ है? 2019 में. ओके, will be exempt from tax if that it is invested in the redeemable bonds issued by the National Highway Authority of India. Comment whether it is true or false. तो यहाँ ये स्टेटमेंट को फॉल्स बोला गया है। क्यों फॉल्स बोला गया है, देखिए हम आंसर पढ़ते तो हमें आइडिया है। द एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54 EC is restricted by limiting the maximum investment in the long-term specified asset, that is bonds of NHAI or REL redeemable after 3 years with up to rupees 50 lakh. ओके, 50 लाख का वहाँ पे लिमिट मैंने आपको कराया, वैसा ही समय आपने पूरा 75 लाख रोक दिया, तो कितना एग्जम्पशन आपको मिलेगा? 50 लाख मिल सकता है, ऊपर का नहीं मिलेगा। Whether such investment is made in the below previous year or subsequent previous year both. Therefore, in this case, 54 EC can be availed only to the extent of 50 लाख। मतलब आपने पूरा 75 लाख रोकी दीधा, પૂરેપૂરા 75 નહીં મળે, કારણ કે આ નેશનલ હાઈવે ઓથોરિટી અને રૂરલ ઇલેક્ટ્રિફિકેશન બોર્ડમાં તમે મેક્સિમમ કેટલું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરી શકો? 50 લાખ. ઓકે, તમે પૂરેપૂરા 75 લાખ એમાં રોકશો તો પણ તમને એક્ઝમ્પશન કેટલાનું મળશે? 50 લાખનું. બાકીના 25 લાખ ભલે તમે ઇન્વેસ્ટ કર્યા નહીં મળે, तो તમારે એનું એક્ઝમ્પશન જોઈતું હોય તો તમે ક્યાં ઇન્વેસ્ટ કરો? रेलवे अथॉरिटी, जो रेलवे कॉर्पोरेशन का रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन की बॉन्ड है, या तो फिर वो जो दूसरी एजेंसी है जिसको हम बोलते हैं पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, उसमें इन्वेस्ट करते हो तो मिलेगा। लेकिन ये दो के बॉन्ड की मैक्सिमम लिमिट कितनी है? 50 लाख की, तो उससे ऊपर आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। अगर उससे ऊपर किया है सर यस बेटा बोलिए। सर इसमें 3 इयर्स की जगह 5 इयर्स आएगा ना? हाँ 5 ईयर आएगा, तो यहाँ 5 ईयर ही बोला है ना। यहाँ क्या है, ये इससे कोई लेना दे, ये तो क्या है, ओके 3 इयर्स रिडीमेबल, नहीं यस 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 5 ईयर आएगा। यहाँ 5 ईयर कर दीजिए, बात आपकी सही है, यहाँ 5 ईयर कर दीजिए, क्योंकि प्रोविजन भी कहता है 5 ईयर। ये 3 इयर्स वाला किस में? रेलवे वाले में 3 इयर्स है, बट यहाँ 5 ईयर कर दीजिए, बात आपकी सही है। लेकिन यहाँ पॉइंट मेरा क्या है वो समझ में आया आपको? ये दोनों में इन्वेस्टमेंट करते हो तो मैक्सिमम 50 लाख तक का ही कर सकते हो। आपने ऑलरेडी 20 लाख का कर दिया, तो अब ये साल में सिर्फ 30 कर सकते हो। सपोज ये साल में सपोज सिर्फ 30 किया, तो आगे के 2 साल में सिर्फ 20 कर सकते हो। अगर आगे उसके आगे सपोज आपका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, पहली बार आप बॉन्ड बाय कर रहे हो, ये साल में 30 लाख के बाय किए, तो दूसरी बार कैपिटल गेन होता है, आपका ऑलरेडी 30 लाख का इन्वेस्टमेंट है, आप दूसरा कितना बाय कर सकते हो? नेशनल हाईवे और ये रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के सिर्फ 20 लाख के बाई से कर सकते हो, और ये 5 साल आएगा यहाँ पे। आपकी बात सही है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट एंड लास्ट सेक्शन इज सेक्शन 54 सर यहाँ पर जो 50 लाख हमको थी ना, हाँ 50 लाख जो ले लीजिए वो दोनों का मिला के हाँ, दोनों का मिला के 50 लाख, दोनों का मिला के बेटा, दोनों का मिला के, या कोई एक में आपने 50 कर दिया तो दूसरे में नहीं मिलेगा, दोनों का मिला के 50 लाख, कंबाइंड लिमिट इज 50, दोनों का मिला के, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन बेटा? नो सर। Let us go ahead with the other points. Okay. Now there is a section 54. Now what section 54F? Now the last section is section 54F. Now what section 54F says?
कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। देखो वहाँ ऊपर वाले में एनी मत पढ़ना, यहाँ पे ऐसे स्पेसिफाइड है लैंड और बिल्डिंग और बोथ, तो एनी वाला यहाँ पे आता है, तो गलती से वहाँ पे एनी लिख दिया गया है। तो देखो आप कोई भी कैपिटल एसेट बेचते हो, एनी कौन सी, और वो एसेट कैसी होनी चाहिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। तो कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट अदर देन रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, मतलब रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को छोड़ के दूसरी कोई भी कैपिटल एसेट आप बाय करते हो, सेल करते हो और उस पर कैपिटल गेन होता है, और उस पर अगर आपको क्या बचाना है, यू वांट टू सेव दी कैपिटल गेन टैक्स बचाना है, तो 54 ऐप में आपको एग्जम्पशन मिल सकता है। कितना मिल सकता है, किसको मिल सकता है, कौन सी नई असेट बाय करनी पड़ेगी, वो सभी पॉइंट यहाँ पे डिस्कस किए गए। लेट अस डिस्कस। देखो हु इज एलिजिबल असेट, हियर द एलिजिबल असेट इज द इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। देखो यहाँ एग्जम्पशन किसको मिल सकता है, या तो इंडिविजुअल को या तो एचयूएफ को। मतलब देखो ऊपर के दो सेक्शन जो थे, ये 54 EC एंड 54 D, ये दोनों में एनी एसएससी लिखा था। ओके, मतलब आपने 5 सेक्शन पढ़े, उसमें से 3 तो ऐसे जो सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ को मिलते हैं। 54 इंडिविजुअल और एचयूएफ को मिलता है, 54B इंडिविजुअल और एचयूएफ को मिलता है, 54D एंड EC किसको मिलता है, इट इज टू एनी एसएससी, एंड अगेन 54F इंडिविजुअल और एचयूएफ को मिलता है। तो देखो यहाँ पे who can claim the exemption under this section, so this exemption is available to individual और HUF। देखो कौन सी असेट बेचने पे आपको कैपिटल गेन हुआ, तो एनी कैपिटल असेट विच इज अ लॉन्ग टर्म एंड अदर देन रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को छोड़ के आपने कोई भी कैपिटल असेट बेची है जो कैसी है, लॉन्ग टर्म। दिस ट्रांसफर ऑफ वैकेंट लॉन प्लॉट इज एलिजिबल फॉर एग्जम्पशन। क्या होना चाहिए, और मतलब कोई भी असेट, रेसिडेंशियल हाउस को छोड़ के कोई भी असेट को बेचिए, कैपिटल गेन हुआ है, इट इज एग्जम्प्ट प्रोवाइडेड दैट असेसी शुड नॉट ओन मोर देन वन रेसिडेंशियल हाउस ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। मतलब उसके पास, देखो 54 में एग्जम्पशन उसको क्लेम करना है, 54 ऐप में, तो उसके पास एक से ज्यादा रेसिडेंशियल हाउस नहीं होने चाहिए। तो मैक्सिमम एक घर होगा, क्योंकि यहाँ उसको नया इन्वेस्टमेंट किसमें करना है, नया एक घर बाय करना है। तो कोई भी कैपिटल असेट बेचो घर के अलावा, घर के सामने घर लिख लोगे तो क्या आएगा, 54 आएगा। इन कोई भी असेट के सामने अगर आप घर लेना चाहते हो, आप नया घर लेके कैपिटल गेन पे टैक्स बचा सकते हो, लेकिन कंडीशन क्या है कि आपके पास एक से ज्यादा घर नहीं होने चाहिए। एक असेट चालसे बीजू खरीदीने તમે એક્ઝમ્પશન લઈ લો, બે છે ને પછી ત્રીજું ખરીદીને એક્ઝમ્પશન લેવા માંગો તો નહીં મળે। तो आपको मैक्सिमम, आपके पास एक घर है, आप दूसरा खरीद दो और एग्जम्पशन क्लेम करो। ओके, तो सी विच न्यू असेट इज रिक्वायर्ड टू बी एक्वायर्ड, तो वन न्यू रेसिडेंशियल, मतलब वन रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी यू हैव टू एक्वायर। देखो कितने टाइम में बाय करना है, तो देखो તમે કોઈ પણ કેપિટલ અસેટ બેચી છે એના એક વર્ષ પહેલા, मतलब या 54 જેવું છે, 1 ईयर बिफोर द डेट ऑफ ट्रांसफर आपने बाय कर लिया है, तो आप एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हो। या तो फिर 2 साल में आप नया घर बाय करते हो, एक्वायर करते हो, मिलेगा, या तो फिर 3 साल के अंदर आप नया घर कंस्ट्रक्ट करोगे तो भी मिलेगा। ओके, आपको एग्जम्पशन यहाँ मिल जाएगा। ओके, असेट कौन सी बेची होनी चाहिए, कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट हाउस प्रॉपर्टी को छोड़ के, और उसके सामने आपको क्या बाय करना है, क्योंकि नया हाउस प्रॉपर्टी। लेकिन आपके पास एक घर है तो दूसरा बाय कर सकते हो, 2 है तो तीसरा बाय करके एग्जम्पशन नहीं ले सकते। कितने टाइम में बाय करना है, कि विदिन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर, सॉरी विदिन 1 ईयर प्रायर टू द डेट ऑफ ट्रांसफर, और विदिन 2 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर, और विदिन 3 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर यू हैव टू कंस्ट्रक्ट द न्यू हाउस। ओके, देखो यहाँ क्वांटम ऑफ एग्जम्पशन का थोड़ा क्राइटेरिया डिफरेंट है। बाकी सभी ऊपर के चारों डिडक्शन में, एग्जम्पशन में आपको मैंने क्या पढ़ा है, कितना एग्जम्पशन मिलेगा, इन्वेस्टमेंट इन द न्यू असेट और कैपिटल गेन, व्हिच एवर इज लोअर इज एग्जाम। लेकिन यहाँ अमाउंट ऑफ एग्जम्पशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखो यहाँ प्रोपोर्शनल एग्जम्पशन है। जस्ट टू गेट द एग्जम्पशन ऑफ अमाउंट फ्रॉम द कैपिटल गेन, होल अमाउंट ऑफ सेल कंसिडरेशन शुड बी इन्वेस्टेड। तो અહીંયા તો બાકી ઉપરના બધા પોઈન્ટમાં શું ઇન્વેસ્ટ કરવાનું કહે છે, તો તમારા કેપિટલ ગેઇનનું અમાઉન્ટ છે એટલું જ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરો। પણ 54F નું ડિડક્શન જોઈતું, એક્ઝમ્પશન જોઈતું હોય, તો યુ આર સપોઝ ટુ મેક ધી ફૂલ સેલ કન્સિડરેશન, જેટલા પૈસા આવ્યા છે બધા જ રોકી દો, कैपिटल गेन अकेलाना नहीं, પણ જેટલા, सपोज मैंने कोई लैंड बेची और लैंड पे मुझे 1 करोड़ रुपया मिला, और 1 करोड़, लेकिन लैंड मुझे मिला 1 करोड़ रुपया, लेकिन वो मैंने परचेज कर रखी थी समझ लो 80 लाख में, और इंडेक्सेशन को अप्लाई करके वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आया 90 लाख।
तो 1 करोड़ में मैंने बेची 90 लाख, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, डिफरेंस निकाला, मुझे कैपिटल गेन कितने का हुआ 10 लाख, और ये 10 लाख पे मुझे टैक्स नहीं पे करना है। तो मैं क्या करूँ, एक नया घर खरीद सकता हूँ 54 ऐप में एक्सटेंशन क्लेम करके। तो 54 ऐप में एग्जाम्पशन करके नया घर खरीदना चाहता हूँ, तो कैन आई बाई, तो यस, लेकिन कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, आपको इन्वेस्टमेंट पूरा सेल कंसिडरेशन का करना पड़ेगा तो मिलेगा, अगर पूरा नहीं करोगे तो प्रोपोर्शनल एग्जाम्पशन मिलेगा। तो देखो कितना एग्जाम्पशन मिलता है, तो अमाउंट इन्वेस्टेड इन द न्यू हाउस, नए घर में कितना इन्वेस्ट करते हो, मल्टीप्लाई बाय लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन डिवाइडेड बाय सेल कंसिडरेशन। ये फॉर्मूला अप्लाई करना है कि अमाउंट कितना नया घर में इन्वेस्ट किया है, एंड देन यू हैव टू गेट द रेशियो कि टोटल કન્સિડરેશનમાંથી ટોટલ કન્સિડરેશન અને કેપિટલ ગેઇનનો રેશિયો કેટલો છે। ઓકે, હું આપું મતલબ લોંગ ટર્મ કેપિટલ ગેઇન ડિવાइडेड बाय नेट सेल कंसिडरेशन मल्टीप्लाई बाय अमाउंट इन्वेस्टेड इन द न्यू हाउस, इतना आपको एग्जाम्पल मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल सी, लेट अस टेक वन एग्जाम्पल सी दैट सपोज मैंने अभी जो एग्जाम्पल दिया कि सपोज मैंने 1 करोड़ का कोई घर बेचा, 1 करोड़ रुपये में घर बेचा, ओके, घर नहीं, कोई लैंड बेची, ओके, और ये सपोज ये अर्बन लैंड थी, मैंने बेच दी, और उस पर मुझे कैपिटल गेन हुआ, सपोज इसका इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होनी चाहिए, इसीलिए मैं रहा हूँ इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से ₹80 लाख, 80 लाख इसमें से लेस कर रहा हूँ, तो मुझे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना हुआ, तो आई एम हैविंग अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑफ ₹20 लाख। ओके, तो ये मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, और इस पर मुझे टैक्स नहीं पे करना है, और मुझे सेक्शन 54 एफ का एग्जम्पशन क्लेम करना है। तो मुझे नया घर बाय करना होगा। ओके, तो नया घर मैं बाय करना चाहता हूँ, तो नया घर मैंने बाय किया तो कितना एग्जम्पशन मिलेगा, तो आपको क्या करना है, इन्वेस्टमेंट इन अ न्यू हाउस, समझ लो। तो इन्वेस्टमेंट मैंने सपोज ये पूरा 20 लाख है ना, पूरा 20 का 20 मैंने इन्वेस्ट कर दिया, कैपिटल गेन आता है पूरे रोक ही दीजिए, समझ लो कि मैंने पूरा सपोज समझ लो 20 नहीं, मैंने 50 लाख का घर खरीदा, मैंने नया घर कितने में परचेज किया, 50 लाख में नया घर खरीदा। तो दिस इज दी इन्वेस्टमेंट इन द न्यू हाउस, और मुझे क्या करना है कि इन्वेस्टमेंट इन द न्यू हाउस मल्टीप्लाई बाय लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन डिवाइडेड बाय माय सेल कंसिडरेशन, और ऐसा करने के बाद जो फिगर आएगी इतना एग्जाम्पशन मुझे मिलेगा। तो यहाँ आप देख सकते हो कि मेरा नए घर में इन्वेस्टमेंट कितने का है, तो 50 लाख का, ओके, और उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से, तो मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तो कितना है 20 लाख का, ओके, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इज 20 लाख, ओके, तो ये आया, देखो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मेरा 20 लाख है, 50 लाख 10 लाख આવશે 50 लाख મલ્ટીપ્લાય બાય આપણે કરીશું 20 લાખ में डिवाइडेड बाय करीશું, ओके, पहले ये कर देते हैं। तो ये मेरा कैलकुलेटर एरर दिखा रहा है कि 50 लाख गुणिया 20 लाख कर इसको क्या देते, तो मैंने डिवाइड कर दिए। हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना है, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इज 20 लाख, और मेरा सेल कंसिडरेशन कितना है 1 करोड़, तो 20 लाख डिवाइडेड बाय 1 करोड़ करोगे, ओके, तो आपका फिगर आया 2 10 લાખ 10 लाख नहीं, 10 लाख में 1 करोड़ आवશે ને, नहीं नहीं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना है मेरा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इज 2 लाख 20 lakh. 20 लाख 20 लाख इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और सेल कंसिडरेशन कितना है मेरा 1 करोड़, तो हाँ 1 करोड़, 1 crore. 1 करोड़ इज माई सेल कंसिडरेशन, ओके, 0.2 आया, मल्टीप्लाई बाय हम करेंगे 50 लाख बराबर છે, એટલે આપણે કેટલું એક્ઝમ્પશન મળશે આપણને, અહીંયા જે ફિગર આવશે 10 લાખ આવશે। તો 10 ભલે lakh. જો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે મને કેપિટલ ગેન થયો 20 લાખનું, કોઈ મેં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સામે કર્યું 50 લાખનું, 50 લાખનું કરીને તો મને એક્ઝમ્પશન પૂરેપૂરું નહીં મળે, आई विल गेट द प्रोपोर्शनेट एग्जम्पशन। अगर मुझे पूरा एग्जम्पशन चाहिए तो पूरा 1 करोड़ इन्वेस्ट करूँ तो पूरे एग्जम्पशन મળે 20 लाख में, जो समझी लो कि पूरा 1 करोड़ में रोक ही दीदा, ओके, इसको इससे डिवाइड करते तो 0.2 आता है, इसको इससे डिवाइड करते 1 करोड़, और यहाँ पे 1 करोड़, 1 करोड़ 1 करोड़ निकल जाएंगे, तो
मुझे पूरा 20 लाख का एग्जाम्पशन मिल जाएगा। मतलब पूरे एग्जाम्पशन જોઈતો હોય તો જેટલા પૈસા આયા ને બધા રોકશો ને તો તમને પૂરેપૂરું 20 લાખનું એક્ઝમ્પશન મળશે। अदरवाइज प्रपोर्शनेट एग्जाम्पशन इज अवेलेबल। प्रपोर्शनेट एग्जाम्पशन आपको मिलेगा तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करनी पड़ेगी कि अमाउंट इन्वेस्टेड इन न्यू असेट्स मल्टीप्लाई बाय लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन डिवाइडेड बाय सेल कंसीडरेशन दैट विल बी अलाउड एज ए एग्जाम्पशन। देखो ये एग्जाम्पशन कब विड्रॉ हो जाएगा, तो कि आपने जो नया घर खरीदा है वो 3 साल में बेच दोगे तो, या तो फिर देखो आपको यहाँ कंडीशन क्या बोली, आपके पास एक घर है और एक दूसरा ये नया खरीद सकते हो, लेकिन ये आप तीसरा भी खरीद देते हो ये 3 साल के अंदर 2 साल के अंदर। देखो असेसी परचेज अनदर रेसिडेंशियल हाउस विद इन 3 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ ओरिजिनल असेट। मतलब आपने ये ओरिजिनल असेट बेची, उसके ट्रांसफर के बाद आपने एक नया घर आपने बाय किया और फिर दूसरा भी एक बाय करोगे तो भी एग्जम्पशन विड्रॉ हो जाएगा। और इफ द assessee completes construction of another residential house in or outside India within 3 years from the date of transfer of original asset। સમજી લો 3 વર્ષની અંદર બીજું એક ઘર બને, मतलब આ એક તો તમારે ખરીદવાનું જ છે કમ્પલસરી, અને એ સિવાય તમે એક બીજું બાય કરી લેશો ને તો તમારું એક્ઝમ્પશન વિડ્રો કરશે। અને કા પછી તમારી પાસે જે આ નવું બાય કરેલું છે એ 3 વર્ષની અંદર તમે વેચી દેશો તો પણ એક્ઝમ્પશન વિડ્રો થશે। તો ધીસ ઇઝ સેક્શન 54F that we have discussed। okay, there is one example, now that example we'll do tomorrow। ये कोई कैपिटल गेन स्कीम हमने डिस्कस कर दी, ये जरूरी नहीं है। तो नाउ टुमारो वी विल डिस्कस दिस रेट्स ऑफ कैपिटल गेन, दिस वन एग्जांपल, ओके, एंड रेट्स, और उसके बाद एक दूसरा एग्जांपल है। मतलब 2 एग्जांपल और रेट्स इतना ही डिस्कस करना है। तो प्रोबेबली टुमारो विल बी एबल टू कंप्लीट दिस कैपिटल गेन। ओके, so here I'm concluding my lecture। I hope that whatever I have discussed with you today, that you all have understood, you don't have any doubt, or if you have a doubt